Good morning. I am Dr. Prashant Biradar, Assistant Professor. I welcome all for the national webinar on daily regimen and seasonal regimen in the management of lifestyle disorders and healthy life, organized by Samita Siddhant Department, Dhanvantari Ayurved Medical College and Charitable Hospital, Udgir. First, I heartily welcome our inaugural function guest, Dr. Sriramji Saurikar sir, Member of Management Council, MUHS Nashik, Ayush Advisor, Government of India, and Dr. Rajanji Patankar sir, the famous Ayurved practitioner. I welcome the expert speakers of this webinar, Dr. Maheshji Vyas sir, Dean, Head Faculty, All India Institute of Ayurveda, Delhi, and Dr. Pradeepji Bhabar sir, Principal and HOD, SMBT Ayurved College, Igatpuri, Nashik. I also welcome chairpersons of this webinar, Dr. Sanjayji Satpute sir, Principal and HOD, Ayurved College, Sion, Mumbai, and Dr. Pravinji Pete sir, Principal and HOD, VP Ayurved College, Sangli. Let's start the webinar with Dhanvantari Pujan. I request Dr. Datta Patil sir, Principal, Dhanvantari Ayurved Medical College, Udgir, for Dhanvantari Pujan. आज शहीद दिन है, मैं डॉक्टर पाटिल सर को रिक्वेस्ट करता हूं भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के प्रतिमा को पूजन करें, अभिवादन करें। शंखं चक्रं जलौका दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्ध्या शुकपरिविलसन् मौक्तिमम्भोजनं कालाम्भोदोज्ज्वलां कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्य वन्दे धन्वन्तरिं निखिल गदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। Thank you, Dr. Datta Patil sir. Thank you very much, organizers, for inviting me on this national webinar. The Principal of Dhanvantari Ayurved College, Dr. Datta Patil sir. Today's speaker, main speaker, Professor Mahesh Vyas,
Dean, All India Institute of Ayurveda, New Delhi. Dr. Patankar, who is also a speaker in this particular seminar. All other teacher participants of Dhanvantari Ayurveda College, as well as student participants from all over India. The topic for today's seminar is daily and seasonal regimen for management of lifestyle disorders. Considering the pandemic which we are facing since last year, almost 1 year has passed. Exactly in March 22nd, the first lockdown was announced. And today almost we are celebrating the anniversary of lockdown, I will say. And still we are fighting with this pandemic. It appears that we have not moved forward at all. Because the same problems which we are facing last March, the same problems we are facing today also. हेलो सर, मैंने मेरी स्लाइड आपको व्हाट्सएप की है, वो चालू कर दीजिएगा उधर से. Please mute all others. I request all other participants to mute their speakers so that I can speak. So we have not moved forward, although we are talking about different types of medicines. Vaccination has also started. Many of the aged senior citizens have been vaccinated. But it appears that the spread of this pandemic is not stopping at all. Even it is not retarding. On the contrary, it is increasing day by day. With every coming day, it is increasing. Why it is happening? We have to reconsider the facts. Of course, I should not tell my Ayurveda experts why this is happening, because we know very well the basic cause of all these things. But unfortunately, the policy makers who are running this show, who are driving everything in the management of this COVID situation, driving the country and driving the world also, they are more interested in searching the drugs. Everybody speaks of the drugs. Which new drug is available? People are talking about reducing the prices of the drugs like remdesivir and all antiviral drugs. They are thinking about the immunity boosting drugs. Everything they attach with drugs. They speak of drugs, immunity boosting drugs, antiviral drugs, antibiotic drugs. Everybody is interested in drugs. Patient also, doctor also, industry also, policymakers also, everybody is interested in drugs. Because people want quick solutions. Drugs usually give quick solutions. That's why they are more interested. Everybody is interested in drugs. A patient approaching a doctor, if the doctor doesn't prescribe any drug, he will simply tell how to behave. That patient will not feel that he is examined and treated by a doctor. But even if doctor doesn't advise him regarding any lifestyle or any his diet or a behavior, simply he gives some medicine, then he feels satisfied. Okay, yeah, doctor has examined me. Why this mentality of giving drugs has been imbibed in all of us since years together by the industry. My friends, this is simple economics. And the world is run by economy. Everybody interested in economy. If you talk about some drugs or something, the people will ask you how much money you can earn, how much revenue you can earn, how much foreign currency you can earn, how much export you can provide. Then and then only the policy makers will show interest in you. And this earning of money is not dependent on what results you are giving. I will say that it depends how you can fool the people.
The money earning more depends rather than on results, it depends more on fooling the people. And drugs can fool people. But you remember very well, you can fool one, you can feed all for some time, but you cannot fool all for all the time. That's why drugs go on changing with every coming day. The last year's drug is ineffective today as the new drug arrives. I will congratulate Dhanvantari Ayurved College for selecting this particular type of management of lifestyle disorder through daily and seasonal regimes. Because that is the key to every disease, key to disease problems. But this key is, of course, it's a difficult key to find out. If you tell, I remember many, some patients approaching me when I told them that you have to stop this and this and this and this. If you want to get healthy, you should stop doing this. You should stop drinking this thing. You should stop smoking. You should stop drinking alcohol. You should stop taking ice cream. You should stop taking cold water, like that, like that. He listened to me, and while departing, he asked me one question, which is the problem of everybody for all the time. He asked me, doctor, if I am not allowed to do all these things, which I like very much, why should I live? There is no point in living at all. My friend, this tells you the mentality of the people. That people, what may, people want to enjoy the life. Let smoking kill them, but they want to enjoy the moment of that smoking. Let overeating kill them, but they want to enjoy the bite, which they like most. And this mentality has been imbibed purposefully by the economists of the world who want to earn the money. If people will stop drinking alcohol, what the industry will do? How the government can earn the revenue? If people will stop taking ice cream, how the people will earn money? If the people will not fall sick, how a doctor can earn money, my friends? So the issue is that people will never tell anybody, doctor will never tell anybody how to get healthy. If we tell the people that hot water is the remedy for almost all the diseases, people will laugh at us. But that is the point, my friends. So today, the main problem in the world is lifestyle disorders. Gone are the days when people were suffering from infectious disease was the main problem of the people. Gone are the days where other types of problems were this. Even the heart disease is also reducing. Of course, it's a lifestyle disorder. I do agree with that. But everything is, we say that Agni is the main problem of all the disease. Mandagni is the main problem of all the disease. Purush, it is said that Yajja Purushi Adhya we have in Charak. So the issues which are responsible, the factors which are responsible for generation of a Purush are the factors responsible for generation of disease as well. And that's why we have controlled those factors. And how those factors can be controlled? By designing your regimens, by designing your daily regimen, by designing your seasonal regimens. And another important thing is that these regimens cannot be common, uniform for everybody. These regimens are going to change from person to person, at least from Prakriti to Prakriti. So that's why the messages moving on WhatsApp and social media, like Haldi is good for everything. Haldi is good, but Haldi is not good for everybody, my friends. It may be dangerous for many people. It may be good for some people. Ayushkat, good for some people for some days, not for all people. Chawanfra, good for all, but some people for some days, not for all people. So this thinking is very important. Something is important for some people for some time in some seasons.
this thinking needs to be spread all over the world, at least to our neighbors. And these are the areas where we have our strength. Here lies our strength, and that strength needs to be capitalized. Our strength doesn't lie in immune boosting drugs which we are trying to propagate. Immune boosting drugs, finding immune drugs in Ayurveda is fooling ourselves and the world. Don't do that, friends. Immunity needs to be earned by daily regimens, by daily life, adopting daily regular lifestyle. It cannot be earned by popping a pill. Popping is pill is just giving a false security. So we have to imbibe this feeling in the minds of the people. It's a very difficult task because people are already fooled. And it is very difficult to bring out these people, take out these people, because this fooling is imbibed right from a common man to the top level officials in the official policy makers. They are driven by the economy, my friends. And it is our duty as an Ayurveda expert that we have to bring this society out of this fooling. In the fool's world, we have to bring them out. I think I have spoken enough. I have taken enough of your time because there are speakers like Dr. Mahesh Vyas, who is the most expert. He is an expert in Samhitas also. He is a master of Charak. He is a student of our beloved great teacher, Dr. Ram Babu Dwivedi ji, who is one of the Charakacharyas of today. He is a student of him, Dr. Dwivedi. I know that you will be benefited from his speech very nicely. He speaks on the basis of the Samhitas. So I also congratulate the organizers for inviting him as a speaker to address this seminar. I once again thank all these participants, the organizers, for giving me an opportunity, sir. Thank you very much. Thanks, sir. Thank you, sir. I request Dr. Datta Patil, sir, for presidential address. Honorable Dr. Shriramji Saurikar sir, Member Management Council, MEHS Nashik, Advisor, Ministry of Ayush. Honorable Dr. Maheshji Vyas, Dean PhD AIIA. Dr. Sanjayji Satpute, Chairperson of this session. Other speakers, Dr. Pradeepji Bhabar, Chairperson, Dr. Praveenji Petil, all the dignitaries we have joined. Teaching faculty. I welcome you all on behalf of Dhanvantari Ayurvedic Medical College and Charitable Hospital. As in the inaugural speech, Dr. Saurikar sir has said, it is need of hour that we are supposed to be very keen about our daily schedules. And as far as many of the lifestyle disorders are concerned, these are particularly related with the way we consume and behave in our day-to-day lifestyle. So thinking on these points, we requested Dr. Mahesh Vyas sir, Dr. Abul sir, be the dominant speakers for this particular topic. And both of them have given consent, even if I am very much thankful to the chairpersons also. And lastly, as far as this COVID pandemic situation is concerned, many of the diseases which are occurring and the way we are suffering financially on the health ground, we are supposed to be very particular in our lifestyle. We are supposed to give particular message to the society also by behaving with a very scheduled pattern, so that it will definitely help in our national economy,
Once again, I welcome you all and thank you all for being the participant, being this eminent speaker, even if because of some reasons we are not audible to Dr. Rajanji Patankar sir, who was the first registered person for this national regiment, and we had requested him, but definitely in the valedictory session, Dr. Rajan Patankar sir will also give the concluding speech. Once again, I request, I thank and request the organizers to continue with Dr. Mahesh Vyas's speech. And with these words, and we have today Martyrs Day, the independence which we have got by very particular manners. I pay my tribute to Bhagat Singh ji, Rajguru Sukhdev, who have given their life for independence of our country. We have already been aware of शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा, बाकी यही निशा होगा. थैंक यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. Thank you, Dr. Dattapalli, sir. Let's start the first session of this webinar. We have Dr. Sanjay Ji Satpute, sir, as a chairperson for the first session of this webinar. First session will be delivered by Dr. Mahesh Ji Vyas, sir, on the topic of role of daily regimen and seasonal regimen in the management of lifestyle disorders. I request Dr. Mahesh Ji Vyas, sir, to start the first session. Dr. Vyas, sir. My guru and mentor, respected Professor S.S. Savrikar sir, Professor Datta Patil ji, Principal Dhanvantari Ayurvedic College, Dr. Rajendra Patankar ji, Professor Satpute ji, all the faculty members and dear friends. Good morning and welcome to all of you. Today's my topic is role of daily regime and seasonal regime in management of lifestyle disorders. Next slide please. जैसा कि हम सभी जानते हैं, आयुर्वेद में दिनचर्या का, ऋतुचर्या का, डाइट का, लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा रोल है. लेकिन मेन बात है कि अगर हम उसको विधिवत रूप से अगर उसका पालन नहीं करें तो वो जो टेक्स्ट बुक में हमको केवल एक्सप्लेन कर रखा वहीं तक सीमित रह जाता है. उसके परिणाम जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक हम उसको यही देखते रहते हैं कि इसका एविडेंस क्या है. तो आज का जो समय है ये एविडेंस बेस्ड साइंस के रूप में है. हर एक व्यक्ति इन सब चीजों को एविडेंस के रूप में देखता है कि किस रूप में इसका परिणाम है. तो अगर हम देखें तो आयुर्वेद में जहाँ पर आयुर्वेद प्रारंभ होता है और आयुर्वेद के प्रारंभ में सबसे पहले चरक संहिता में सूत्र स्थान में चैप्टर नंबर 1 में जब आचार्य चरक ने सबसे पहले कोटेशन नंबर 24 में सूत्र स्थान में जब एक बात कही हेतुलिंग और औषध की, तो वहां पर आचार्य चक्रपाणी ने कहा कि यावच्च आयुर्वेद वाच्यम, यानी जो भी कुछ आयुर्वेद में कहा गया तावत सर्वम हेत्वाद्य अंतर्भूतम, उस सबका ग्रहण जो है हेतु आदि जो 3 हेतुलिंग और औषध है इसके अंदर उसका ग्रहण किया गया है. तो हम चाहे वो दिनचर्या को देखें, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या या डाइट को, लाइफस्टाइल को, कहीं ना कहीं इन 3 जो मुख्य बिंदु आयुर्वेद के हैं, आयुर्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, उसके अंतर्गत उसका ग्रहण होता है. और उन्हीं के रूप में अगर हम दिनचर्या को, ऋतुचर्या को अलग अलग रूप में अगर उसको डिस्क्राइब करें तो ज्यादा अच्छे से उसका इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं. इसी बात को अगर हम जहां पर दिनचर्या और ऋतुचर्या को जब तक तंत्रोक्त विधि से उसका वो नहीं करेंगे परिपालन, तब तक उसका परिणाम सही नहीं मिलता है या उसका सही रूप से परिपालन ही नहीं हो पाता है. चरक संहिता के सूत्र स्थान में चैप्टर नंबर 1 में
कोटेशन नंबर 28 और 29 में जहां पर ये बताया गया कि सामान्यम च विशेषं च गुणान् द्रव्याणि कर्म च समवायं च तंज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमा स्थिता, ये जो तंत्रोक्त विधि बताई है, तंत्रोक्त विधि ही दिनचर्या, ऋतुचर्या There is some problem at the end of Dr. Mahesh Vyas, sir. So we will be continuing with the next speaker. Please hold on. Very good morning to all of you. Very good morning to all of you, respected Patel sir, and all the dignitaries who have joined the sessions. Respected Mahesh Vyas sir, respected Chavlikar sir, respected Patel sir, Dr. Sanjay, Sarkoja sir, and Dr. Praveen Pete sir. Thank you so much for listening me here. It's a great pleasure to and just honor to be here to say a few words about the daily regimens and origination therapy. Thank you so much, Patil sir, and your Department of Clinical Assistant, Dr. Anavale, especially he suggested my name. That's why I am here to say few words. Really, thank you so much once again. First, I would like to please share the PPT. First, next slide, please. First, I would like to salute Lord Dhanvantari, Adhyadevta of Medical Sciences, and all my gurus, just because of whom I am here to say a few about the Ayurveda and my colleagues, and my all parents. Thank you so much. Next slide, please. Today, our topic is the relation between the Dinacharya, Ritucharya, and happy healthy life, and rejuvenation therapies. The first thing I would like to say, what is happiness? The big question mark here. All these things mentioned in the slide, all these are happiness. No one will agree with me. Earning outdoors, having a big car, having a big house, or so many gadgets, or surrounded with so many gadgets is not happiness. Then what is the real happiness? Next slide, please. This is the real happiness. At the age of 60, 70, 80, whatever, you are laughing so frankly, so you may say happily. That is it. The thesis key and the research shows that the most happier persons are most healthy. That is the main target of anybody's life, to be happy and to be healthy. And now the question is, what is health? Next slide, please. The health of an individual can be known for the following aspects. It's just it's a proper nourishment, proper strength, desire and appetite to take food, proper digestion of food ingested at a proper time, sleep at proper time, absence of pathological or dreadful dreams, feeling of freshness after waking up in the morning, proper evaluation of faces, urines and platters at the proper time, and proper functioning of mental faculty, intelligence, understanding, and all aspects. And in the last, very important, absence of any kind of pain. जिसे हम सुख कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन बताती है कि अनुकूल वेदनीय सुखम, जिस तरह से जिसे हम किसी तरह की वेदना या किसी तरह का दुख ना हो, जिसे हम सुख कहेंगे, अल्टरनेटली इसे हम हैप्पीनेस कहते हैं. अगर ये हैप्पीनेस या हम किसी वेदना से मुक्त है तो हम उसे क्या कहेंगे? हेल्थ कहेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Then these what are the ways to the achieve health?
Following with the describing the Ayurveda for maintenance of good health and treatment, that is the diet and nutrition. Second, regimen of personal and social hygiene, that is daily routine, dinacharya, social, seasonal regimens, that is rutucharya, and third one is the acharasya, that is the Sadhurta plan, Sadhurta palan. Next sentence. That is physical health. So then are the again two types of health, that is the physical and mental health. How we can get a physical health? That is the first one is the regular physical activities. Second is good nutrition, जो हमें अपने आहार के या जो हम अन्न ग्रहण करके उसे प्राप्त होता है. थर्ड वन इज एडिक्वेट रेस्ट. सेकंड एंड मेंटल हेल्थ हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो सोशल कनेक्शंस के द्वारा, स्टेइंग एक्टिव, मैनेजिंग स्ट्रेस लेवल्स, ब्रेन हेल्दी डाइट एंड क्वालिटी स्लीप, एंड अगेन meaning and the purpose. The last one point is very important. Now what happens nowadays? Today's scenario is what happens, we can see all around us. The people are waking up in the late and sleeping late at the night. Times of breakfast, dinner, and having improperly adjusted. Many don't have exercise and yoga too. The procedures like Abhidha, Ardhana, Anjan, Nasya, Karnapuran, and Tapan, all these things mentioned in Saita and Dinacharya are now just followed by diseased people only. No any healthy persons or normal person are going to do all those things. Due to improper lifestyle that is not following Dinacharya, the incidence of many lifestyle disorders like diabetes, systemic heart disease, like hyperlipidemia, obesity, hypertension, and are increased day by day. The respected Dr. Mahesh sir look at all these things. What is the scenario? That is the top highest prevalence of death in a worldwide. That is the cardiovascular disease. That is a percentage 7.3 million. Respiratory diseases, the cancer, diabetes, stroke. All these are the major causes of death worldwide today. Next, please. किस वजह से ये सब डेथ होती है? किस तरह एक अगर हम उसके ऊपर एक नजर डालना चाहेंगे तो एक ये हमें पता चलता है कि अगर हम फिजिकली इनएक्टिव होते हैं तो उसका एब्डोमिनल एडिपोसिटी डेवलप होती है. देन माइक्रोफेजियस इन्फ्लेमेशन ऑफ visceral fats, then it results into chronic systematic inflammations, then it is resulted into tisular degeneration, atherosclerosis, neurodegenerations, and tumor growth, and finally it will result into so many lifestyle disorders like type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases, depressions, dementia, colon cancer, breast cancer, all these things. Then here comes the point of conditions. अगर हम ठीक तरह से हमारा दिनचर्या और दिनचर्या का पालन नहीं कर रहे होते हैं तो इन सभी चीजों को हमें फेस करना पड़ता है. साथ में अगर हम जेल को भी अगर दिल्ली नहीं जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. तो हमें अगर हमारा हेल्दी लाइफ या हैप्पी लाइफ जीना है तो क्या करना पड़ेगा? तो बेसिकली दो चीजें होती है. एक तो हमारा डाइट प्रॉपर होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, आचार रसायन होना चाहिए, और उसके साथ अगर हम मेडिसिन कुछ लेते हैं तो रसायन का सेवन होना चाहिए. रसायन सेवन करने से क्या होता है? तो रसायन सेवन से डायरेक्टली एक तो रस अग्नि और मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होता है. So it's improved nourishment, it's improved quality of tissues. Then it develops immunity. That is nowadays immunity what is very important. Since last 1 year we are facing COVID-19 disorder problems due to COVID-19, and the word immunity is discussed everywhere. The people having proper immunity, they are not suffering from COVID-19 symptoms or many other diseases. Here comes the rejuvenations. अगर हमारा रिजुवेनेशन अच्छी तरह से हो जाता है, हमारा शरीर अच्छी तरह से रिजुवेनेट हो जाता है तो हमारी नेचुरली इम्यूनिटी बढ़ जाती है और हम किसी भी तरह के डिसऑर्डर से, किसी तरह के डिसीज से फेस करने के लिए सक्षम हो जाते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हियर अगर ये रिजुवेनेशन कैसे हो जाए, ये तो कोई फार्मूला है कि नहीं इसका कि कोई हम ये करेंगे या कोई उपक्रम करेंगे और उसके तुरंत जल्दी रिजुवेनेशन हो जाता है या रिजुवेनेशन थेरेपी हो जाती है. ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस है. तो कंटिन्यूअसली प्रोसेस कैसे होता है? अगर हम दिनचर्या की तरफ ध्यान देंगे तो जो भी चीजें बताएंगे अबाउट दैट इट्स बेसिक थिंग्स दैट इज द ब्राह्मण वर्ग उत्तिष्ठते ग्रंथन आवाहन जीवन अग्लिकन व्यायाम अभ्यंग कर्णपूरण योगभंग पादाभंग. नेक्स्ट सेक्शन नस्य गंडोष्ठ स्नान अंजना, देन भगवान की पूजा, देन आहार ग्रहण, तंबू सेवन एंड रेगुलर रेस्ट. इन सभी चीजों को दिनचर्या में इस तरह से बताया गया कि हम किसी
सीक्वेंस है या प्रॉपरली करेंगे तो हमारा हेल्थ प्रॉपर रहेगा। नेक्स्ट। लेकिन आजकल ऐसा तो होता नहीं। What today's scenario? Wake up late in the morning. It causes counterproductive harm results in the agenda, social, and other संदर्भ जनरली। The second, अगर हम दिन में कहते हैं हम जब दिन में सो जाते हैं तो वो क्या कॉज करते हैं? मलबद्धता, इनफर्टिलिटी इन मेल एंड female also, then PCOS, PID, endometriosis, tubal blockages, गर्भविकृति, congenital disorders with that, progeroid and inertia, all these things. Then unnatural fatigue, incomplete irritation, subcutaneous irritation of this, next slide please. जनरल हम जो रेगुलरली टूथपेस्ट यूज करते हैं यूजुअली ये मधुर रस युक्त होता है, और जो भी ये कंप्लीटली अपोजिट केस है होता है कि अगर हम जो पूरे रात में जो कफ संचित होता है मुख में, अगर उसको हम निकालना चाहते हैं तो कंप्लीटली उसके अपोजिट रस का दंत हमें उपयोग करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम यूज करते हैं कि मधुर रस वाली जो स्निग्ध होती है, जो पीष्ट स्वरूप होती है, वो पेस्ट का यूज करते हैं, जो उसकी वजह से जो प्रॉपर दंत हमें होना चाहिए वो तो होता नहीं, लेकिन उसकी वजह से डेंटल कैरीज की केसेस बहुत बढ़ते जाते हैं। रिसर्च भी बताता है कि about worldwide 60 to 90% of school children and nearly 100% of adults have dental ectoderm and 52% of adult people have periodontal diseases. Then अंजन तो यूजुअली कोई यूज नहीं करता, प्रतिवर्ष जो भी यूजुअली डेली करने के लिए बोला है वो भी कोई यूज नहीं। धूमपान तो अलग बात है, धूमपान की वजह से लोग धूमपान के बदले आजकल तो धूम्रपान होता है, जो स्मोकिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय मेनी and usually excessive smoking causes all the COPD, bronchitis, heart diseases and stroke etc etc. तो ये सब चीजें हम देखेंगे तो जो भी दिनचर्या में होना चाहिए, संहिता में बताया गया, ग्रंथों में बताया था, वो तो फॉलो नहीं होता है, कंप्लीटली अपोजिट होता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इसको अडॉप्ट कैसे करेंगे और खुद को हेल्दी कैसे रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। A research एक बताता है कि it is also study of 100 people who are randomly surveyed and patient how to know about their dincharya palan, that is the routine lifestyle and health status with the help of structured questionnaires. Collected data was analyzed and Jack square test in Jack square test of association, and it was found that a significant result that is less than 0.1, the health score was found higher in the people whose dincharya score was higher. ये तो सिंपल दिनचर्या का इंपॉर्टेंस हमने बताया। तो की पॉइंट्स इसमें दिनचर्या में जो अगर हम पालन करने को कहेंगे या फॉलो करने के लिए कहेंगे तो मेनली 4 चीजों पे फोकस होता है। एक तो आहार, सेकंड इज निद्रा, थर्ड वन इज व्यायाम एंड स्नान एंड फोर्थ वन इज सदुपयोग पालन। अगर हम पहले बात करेंगे आहार की तो एक हमेशा कहा जाता है कि गुड फूड ऑलवेज क्रिएट्स अ वेरी गुड मूड। हमारा एक चरक संहिता का सूत्र सामने 5वें अध्याय मार्गदर्शक अध्याय को बताया कि आहार कैसा होना चाहिए। तो आहार ऐसा होना चाहिए कि तथ्य निकट प्रयोजित स्वास्थ्यम एनम वर्तन्ते अजागरणं विकाराणां उत्पत्तिकरणं चेत्। ऐसा आहार होना चाहिए तो हमारा स्वास्थ्य को मेंटेन रखे, जो भी डिसीजेस पैदा हुए उसको खत्म करे और किसी और चीजों को उत्पन्न ना करे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। तो होलसम डाइट क्या करता है कि इट्स improved nutrition, series of secondary attributes, that is the declaration of aging, promotion of longevity, immunity against diseases, improvement of intelligence, augmentations of memory and overall enhancement of the mental competence and increased vitality and the luster of the body. Next. All of you know the references given in चरक संहिता, that is आहार परिणाम पर आहार कैसा होना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, ये सब आप all of you know. I am not wasting time about that. Please next slide please. आहार विशेषण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आहार विधि विधान के बारे में बताया। इन सभी चीजों को हम अगर आहार लेते समय या आहार ग्रहण करते समय पालन करेंगे तो ही आहार का हमें जो अपेक्षित रिजल्ट है या इम्पोर्टेंट जो हम चाहते हैं उससे हमारे इम्यूनिटी कैसे बढ़े तो वो प्राप्त हो सकते हैं। वरना आजकल के फास्ट लाइफ में तो ये सब चीजें फॉलो नहीं होती है। लाइफ इज
very fast now. Everybody is under stress. Everybody is running. Then all these things are not followed by individuals. That's why many causes, many diseases are causing. Next slide, please. Then second point आता है जो निद्रा का जो importance बहुत ही important है. So why should we wake up early in the morning? Next. This is a biological cycle. We can say that कि अगर हम टाइम पे सोते हैं या टाइम पे निद्रा लेते हैं और टाइम पे वेकअप करते हैं तो उसका शरीर पे क्या एक्चुअली रिजल्ट होता है तो इस आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो जेनेटिक वेरिएशंस है ये सर्कैडियन जो बायोलॉजिकल टाइमिंग है तो यूजुअली सृष्टि का जो नियम है उसी के अनुसार हमें फॉलो करना चाहिए लेकिन अगर हम देर रात से सोते हैं या देर रात से उठते हैं तो सबसे बड़ा लॉस तो ये होता है कि हमें जब अगले मॉर्निंग जब हम नेक्स्ट टाइम जो हमारा काम के लिए शुरुआत करते थे उसके लिए बेसिकली हमें कम टाइम मिलता है इट इंड्यूसेस स्ट्रेस अगर हम 6 बजे उठने की बजाय 8 बजे उठेंगे 9 बजे उठेंगे तो नेचुरली वो स्ट्रेस डेवलप करेगा हमारे अगले एक्टिविटीज को डैमेज करेगा अगर हम जल्दी होते तो हमें कम से कम 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं जो हमें एक्सरसाइज जैसी चीजों करने में फॉलो करने में जो मदद करती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अर्ली मॉर्निंग हमें उठना चाहिए या बाद में उठते तो नहीं हो सकता कम से कम 6 बजे तो हम उठ सकते हैं आराम से नेक्स्ट These are the hormones related in the brain during sleep. This is the scientific study done. Whatever the hormones related are the, like ADH and melatonin, oxytocin and prolactin. All these things are very important to maintain your health, and these are the causing factors of the aging. Next, please. These are also the GAA, then insulin and cortisols. These are aldosterons and then leptin. All these things are related to directly and indirectly related to our stress levels and happiness levels. These are already this can be monitored while we can take a proper sleep or we are not taking a proper sleep. The levels of these hormones can be easily observed. Next, please. The effects of a lack of sleep. The clinically sleep-deprived subjects are at the higher risk of developing depressions, obesity, hypertension, dyslipidemia, and diabetes mellitus. अगर हम इन सभी चीजों को लेकर अगर जीते और इन सब डिसीज के साथ अगर जीते तो नेचुरली जो भी हमारा लाइफ होगा वो स्ट्रेसफुल या हैप्पी तो नहीं होगा हम अगर दीर्घायुषी भी होंगे तो इन सब डिप्रेशन या ओबेसिटी या हाइपरटेंशन या डायबिटीज मेलाइटिस के साथ जीते हैं तो उसका तो कोई फायदा नहीं होता नेचुरली Next slide, please. Again, it's about व्यायाम and exercise. The श्लोक is वैदिक सुभाषित साहित्य में clear cut कहा गया है कि व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम् आरोग्यं परम भाग्यं स्वस्थं सर्वात्मनां. व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं. सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज दीर्घायुष्य की प्राप्ति होने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए एक्सरसाइज करना चाहिए जितने भी रिसर्चेस हुए जितने भी थ्योरीज रिजुवनेशन के बारे में बताए उन सभी चीजों में इन 3 चीजों का सबसे कॉमन है जो एक आहार निद्रा और एक्सरसाइज प्रॉपर कितना होना चाहिए एक्सरसाइज नेक्स्ट We all know that exercise is good for us. It does more than just improve our physical fitness and also reduces our risk of getting many diseases such as cancer, heart diseases, and diabetes. It helps to reduce stress, help us to sleep better, and it improves our mental health. How much exercise do I need? You must do the exercise according to your physical activity. अर्ध शक्ति व्यायाम बोला है संग्राम में सभी पालन करते हैं उसका कि अर्ध शक्ति जितना हमारा शक्ति है उसके आधुनिक शक्ति जितना ही हम यूज करेंगे नॉर्मली 45 minutes of daily exercise help in the prevention of lifestyle diseases and the most recent guidelines are as follows. The children between the age and 6 to 17 are getting at least 1 hour, that is 60 minutes of physical activities. Adults each week adults need either 2 or 30 minutes, that is 150 minutes of moderate intensity exercise plus muscle strengthening, or 1 hour and 15 minutes, that is 75 minutes for vigorous exercise plus muscle strengthening. Next, exercise for rejuvenation. The lifetime regular exercise slows down age. A group of older people who have exercised all their life, where compared to a group of similarly aged adults and younger adults who do not exercise regularly, the results show that those who have exercised regularly have defined the aging process
having the immunity, muscle mass, and the cholesterol levels of a young person. Next. Again comes the reference about the snana. Deepanam Vruksha Ayusham Snana Murja Palakadam. Pandu Malasamat Veda Tandra Vruddha Pakunji. Deepanam Vruksha Ayusham. आयुष्य वृक्ष होना चाहिए। अगर हम ओज की हानि होती है या ओज के बिना ओज के हम जीते हैं तो हमें किसी तरह का उत्साह या किसी तरह की शक्ति किसी तरह के तो नहीं होती है। तो अब हमारा जो आयुष्य होना चाहिए तो वृक्ष होना चाहिए। तो उसके लिए स्नान का इम्पोर्टेंस कितना है इसके बारे में जो कभी रिसर्च हुए जो भी थ्योरीज बताई गई तो हम वी कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। Cold shower versus hot shower. Whatever results can be obtained after cold shower and hot shower. There are the in this slide we can see. Can you अगर कोल्ड शावर या शीतल जल से अपन स्नान करते हैं तो उसके बेनिफिट्स कहे गए हैं कि डिक्रीज इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, रिड्यूस मसल सोरनेस एंड हेडेक। नेक्स्ट lower cortical levels, improved circulations, and reduce pain. Here we अगर we take hot water shower या उष्ण जल से स्नान करते हैं तो उसमें क्या होता है improved cardiovascular health, improved that, reduce muscle soreness and fatigue, improved brain health, better blood flow to the muscles and improved sleep. Next slide please. Bath and exercise. The bath can boost metabolic health and cause releases of heat shock proteins, which may help the lower blood sugar levels by improving insulin control glucose intake. Research from the Finland published in 2015 suggested that the frequent can reduce the risk of having a heart attack or a stroke at least in a minute. They found that the passive heating raised levels of nitric oxide, a molecule that dilates blood vessels and reduces blood pressure. These are the implications for treating HT and hypertension and improving peripheral circulations in the people with type 2 diabetes mellitus. Anti-inflammatory responses similar to the effect seen in the people after every exercise is also promising since people with chronic diseases tend to have a chronic inflammations. Next slide please. तो ये जब यूजुअली अगर हम एक टॉपिक भी लेंगे अगर आहार के बारे में या सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में या निद्रा के बारे में तो बहुत सारा हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में तो बहुत सारी लेकिन as per time limitations we have just mentioned few things about the ahar nidra and exercise here. Now comes point the Rutucharya, that is Rutucharya, that is seasonal habits or seasonal regimens we can say. Ayurveda has strongly recommended seasonal living. Nowadays due to global warming the seasons are usually changing. In the summer we are feeling just yesterday it was raining here in our place. In the winter season there is a too hot and in the rainy season there is a lack of rain. Just nowadays जो भी ऋतुचर्या ग्रंथ में बताई गई तो उसका वैसे कि अक्सर कदम फॉलो तो नहीं होती लेकिन आचार्य चरण ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा है कि जिस ऋतु में जिस तरह के लक्षण आपको दिखाई देने उस तरह का आपको पालन करना चाहिए। तो इसके जो साइंटिफिक रिसर्च बेस और इसका रिलेशंस हम कहेंगे रिलेशंस के तो हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
seasonal variations in typical environment, that is cellular and urinary reduced in rainy seasons. Plasma cortisol is elevated in autumn, and conviction of sodium. That means अगर हमारी immunity जो usually जो winter seasons में बढ़ती है और rainy seasons में या summer seasons में जो कमी होती है, we are more diseases in seasons like rainy seasons and summer just because of these internal changes. This is chronic disorders which is associated with many health disorders including degenerative diseases, heart diseases, hypertension and cancers. For example, sick workers, particularly including nurses, airplane crews and miners have a higher prevalence of breast and prostate cancer. It is proved that in previous researches. As a signal molecule, melatonin productions help to exhibit signal changes. During the winter, there is a higher natural melatonin peak period due to the longer night, and while in the summer, the natural peak is shorter. यहाँ बात आती है melatonin की. Melatonin जो है वो rejuvenation क्रिया में बहुत important part रोल करता है कि जो उसका high peak level होता है winter season में because वहाँ रातें longer nights होती है और natural peak shorter होता है summer season में क्योंकि वहाँ nights shorter होती है. Next और वो उसके level में important impact करता है. Next please. The original and primary function of melatonin is early life forms such as the unicellular organism was as the free radicals, scavenger and antioxidant. तो बहुत ही important antioxidant है. सभी अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो आखिरी बात melatonin में ही आती है. As an oxidant, melatonin exhibits several unique features which differ from the classic antioxidants. These include as cascade reactions with free radicals and its capacity to be induced under the moderate oxidative stress. These features like melatonin, potent endogenously offering antioxidants and that protect organisms from oxidative stress. आखिर में हम बात करेंगे सदुरुक्त के बारे में. Ayurveda describes like the balance of body, mind, social and spiritual well-being. Ayurveda is the only science which is not dealing only with the physical activities or only body-related things. It also thinks about the mind, it also thinks about the soul, it also thinks about the social activities, spiritual activities. In order to achieve this, the Ayurveda prescribes a certain codes of conduct and it is known as Sadhurutta. आचार रसायन जिसे कहा गया है इस बारे में हम बात करेंगे. Practices the code constantly bring the inner peace and happiness and violating them make a person angry and agitated. अगर हम जो भी चीजें सदुरुक्त में कही गई अगर उसका हम सही तरीके से पालन करते हैं तो हमें इनर पीस और हैप्पीनेस मिलती है. अगर उसका हम प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे उसको वायलेट करेंगे तो नेचुरली वो एंग्री irritated and under stress. So the code of conduct can be defined as ethical, that is a Vedic Sadhurutta, that is a social or economic Sadhurutta, mental and manasik Sadhurutta, moral or naitik Sadhurutta, and physical and that means Shareerik Sadhurutta. And all of the physical and mental codes of conduct to be followed under various Achar Rasayan. Practicing Sadhurutta will improve overall health and well-being of individuals. It also allows a person to respond flexibly to experience of life and will install in everyone a sense of purpose. Next please. This is a types of rasa Sadhurutta palan, that is a good behavior, good religious, good mental conduct, good social conduct, good moral conduct, good ethical conduct, and good personal conduct. Next please. Ethical conduct. One must always be truthful, should have a control over his emotions, and should have a self-control. Do not harm anyone. Behave according to time and place where you are residing. Be virtuous, be courageous, be positive, and free from the anger and jealousy and anxiety. The most important point. The social conduct, that is Samajik Sadhurutta, it respect behavior and social mannerism. One must speak a few words, listen carefully, talk soft, pleasing tone. Put a smile even in the tough conditions and tough situations. Respect parents, elders, teachers, and learn intelligent people. Learn intelligent people and learn to be tolerated.
Third one is the mental या मानसिक सदृढ़ता. It involves keeping a check on oneself, trying to understand who are the purpose of existence, being self-aware, learning the art of cash adjustment and attaining the inner peace. अगर ये सब डिटेल्स में हम जाएंगे तो ये सब डायरेक्टली इंडिकेट करते हैं हमारा हैप्पीनेस से, हमारा हेल्थ से. द मोरल, इसके बाद moral conduct या जैसे हम एथिक्स वगैरह तक कहेंगे. It means doing good social things, helping the poor and needy, being with a friend and relatives in their difficulties. That is attending the social duties, donating blood and organs and all these things activities under this ethics. That is following the path of righteousness and then dharma prana. That is the physical, that is the sharik swasthurutta. It includes personal hygiene, cleanness part of this. It includes the brushing every day, having a bath, wearing clean clothes, smelling good, cutting hairs and nails. All these things are all of you know about very well about the religious conduct. It is about the darshan, worshiping of God, whatever you जिसे आप मानते हैं, जिसे आप चाहते हैं उसको भगवान की पूजा करना. टीचर्स हमारे गुरु वाले हैं, उनके प्रति आदर और सम्मान रखना, मंत्रों का पालन करना, रिलीजियस प्रेयर्स का पालन करना और मेडिटेशन. ऑल दिस थिंग्स कम अंडर दिस सदगुरुता. नेक्स्ट वन प्लीज. लोगों को भय, क्रोध, मन, वैरुद्धारी, anger and hostility are associated with the diabetes and influence of HbA1c in diabetes patient struggling with the glycemic controls. It is directly proved that अगर हम ज्यादा क्रोध करते हैं, ज्यादा एंगर या जिसे हम क्या कहेंगे हेट करते हैं, तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हमारा HbA1c जो लेवल होता है डायबिटीज में, तो उस पे इन्फ्लुएंस करता है. Anger are associated with CSD outcomes and predict the development of arterial fibrillations. ये भी इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, इसके बारे में हम देख के कह सकते हैं कि इसके ऊपर इम्पैक्ट करता है. So one should strive to bring happiness and cheerful, positive manas bhavas को this academic term as hita hai, which is character of Indian culture. Next slide please. सामाजिक सुरक्षा, सत्य, अहिंसा and brahmacharya, that is speaking the always truth, non-violence and observance of sexual discipline. The clear link between stress due to the unsatisfactory interpersonal relationship and cardiovascular disease is scientifically demonstrated. It is already so many papers research are done under this thing. Next please. Dharmic Swadruta, darshan, that is worshipping God and religious, that is gurus, and mantras, religious prayers, meditations, religious improve the spiritual well-being, affect development of the coronary heart diseases and help the stress management. Religious involvement in spiritual well-being is the coping with the social isolations and depressions in type 2 diabetes mellitus patients. Next, please. That is Vyavaharic Sadhurutta. Observing charity and generosity, then intelligence and unconciliated, that is the self-control, speaking the truth, sweet spoken. And marital adjustment, family coherence, and social support are the important in improving glycemic control and self-development behavior. Next, please. All these things we have seen in our understanding are directly related to whatever diseases due to lifestyles and what happens when hormonal. We think about the hormonal study and all these things. The hormones related to stress are then all of you know, that is the cortisol, adrenaline, norepinephrine, epinephrine and vasopressin. जो भी चीजें अगर हम उसको फॉलो करते हैं, जैसे हम क्रोधित होते हैं या किसी का हेट करते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, किसी अंडर कंटिन्यूअस स्ट्रेस में होते हैं, तो इन सभी जो हार्मोन्स की उसकी लेवल बढ़ जाती है, तो नेचुरली वो हार्मफुल हमारे बॉडी के लिए होता है. अगर अब किसी भी कंडीशंस में हम काम रहेंगे या शांत रहेंगे या हैप्पी रहेंगे, किसी को चीज को धैर्य से मुकाबला करेंगे या so in general dopamine, oxytocin and endorphin and serotonin इनकी लेवल जो लेवल होती है वो मेंटेन होती है. तो ये सब hormones are directly related to hormones levels are directly related to happiness and above mentioned hormones levels are directly related to stress. That's why we have to clear that we can say that the relations between the
strength and happiness and Sadrupta Palan. Next, please. So look at these two figures. I would like to just say about just 30 seconds about these images. If you feel concentrate 30 seconds about these images, you can just feel restlessness. You will not feel better. What is this? अगर इस तरह के फिगर या इस तरह के इमेजेस को हम 30 सेकंड तक देख भी नहीं सकते हैं, तो इमेजिन कीजिए हम उसको अगर हम हमारे डेली बिजनेस में अगर हम उसको फॉलो करते हैं, इसी तरह का हमारा बिहेवियर होता है, तो इतना हार्मफुल होगा, कितना हमें तकलीफ देता होगा, हमारे साथ साथ हमारे जो पास वाले होते हैं, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जो कलीग होते हैं, उनको कितना तकलीफ देता होगा. अगेन completely against इसके आगे अगर next slide देखेंगे, look at this slide. The people having a always smile on the face, they make people also happy. तो happiness के लिए जरूरी नहीं कि हम कुछ बहुत सारा एक्सरसाइज करें या कोई रॉकेट साइंस है नहीं. तो उसके लिए तो हमें बेसिक जो हमें सदरुप पालन में जो चीजें कही गई है, वैयक्तिक कहेंगे या सामाजिक कहेंगे या मानसिक कहेंगे, अगर हम उसी को हम फॉलो करते हैं, so naturally we are always happy, and it's directly related to our aging. So all of you are under stress. All of you can observe the people who are under stress, they are aging very fastly. So very simple sign is about that. Usually in humans and you can observe in men. So the darkness circle is around the eyes you can find. That is the early sign of aging. अगर ये आपको ये होता है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आप हैप्पी हो, आप अंडर स्ट्रेस हो, या आप कोई ना कोई लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का जल्दी ही शिकार होने वाला. तो एवरीबॉडी हैज टू अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग, एंड एवरीबॉडी हैज टू क्योंकि हैप्पी होना, everybody has a right to be happy. Everybody has to be always happy and make others happy. That is the only, and all these things are only, so many researches are done on this thing. They all these have already have a scientific proofs. So whenever I need, I have put references about this, all these things. Whatever. So at the end, I remember just one attack where I was चंदू की केसरी जीवन के ऐड थी. तो उसमें कहा गया था कि आप 60 साल के बूढ़े हो या 60 साल के जवान हो. तो एक क्लियर थिंग इंडिकेट करता है, हम जिए तो लंबे जिएंगे, लेकिन क्या हम डिसीज के साथ जिएंगे या कोई बहुत सारी बीमारी लेके जिएंगे, या इस तरह के जो यंग मैन जैसे हम कहेंगे उनके जैसे जिएंगे. तो जनरल केसरी जीवन की एडवर्टाइज थी, हम सभी को जीना चाहते हैं, जल्दी जीना चाहते हैं, लेकिन हमारा जीना अगर इस तरह के सोच हो तो इसका कोई मतलब हो, उसका कोई इम्पोर्टेंस हो. इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी चीजें यहाँ कही गई है तो सब आप उसका पालन करेंगे. So in the conclusion, in the nutshell, we can say that the combined of assigned therapy, that is health diet, dincharya, rubucharya, sadhuruttam, livelihood, very effective package of digestion today. All these things are mentioned here, proved already, research have done. इन सभी जो मैंने मेंशन किया, अगर इसमें कोई गलत हो तो मेरी गलती है, शास्त्र की या किसी रिसर्च की, और जो भी अच्छी चीजें शास्त्र की है, सभी मेरे इसके पहले जो रिसर्च हुए, इसके पहले जो स्टडीज हुए, उन सभी की है. अगर इसमें कोई गलत या कुछ रॉन्ग आपको लगे तो वक्त करके मुझे माफ कर दीजिए. So thank you so much once again, having a chance to interact with all you people. Thank you so much. Thank you so much, Anole sir. Thank you once again, one and all. Have a nice day. Hello, good afternoon, everyone. As we all Ayurvedic physician, we have the responsibility of society as a physical health and mental health. The lecture delivered by Honorable my friend Dr. Pradeep Babar sir, Principal SND Ayurved College, is very useful to us. He focused all the views regarding in Ayurvedic views
It is very useful for us and to the nation, and as a society builder, it is very enlightening lectures delivered by Dr. Pradeep Babar sir. I am deep of the heart thankful to Dr. Pradeep Babar sir, Honorable Dr. Vyas sir, and all the dignitaries presented in this seminar arranged by the Dhanvantari Ayurved College, Udgir. So, thank you very much. There are some errors in network connection, so it is troubling to everyone. So everyone should try to understand regarding the same. And message is very useful by the both lecture, Dr. Honorable Mahesh Vyas sir as well as Dr. Pradeep Babar sir. Very much thank you. Thank you very much, Professor Pradeep sir, for really very informative lecture. And I would like to start my presentation again. Sorry for disturbance due to just network problem. एक बार मुझे बता देंगे कोई भी एक अनम्यूट करके कि कहाँ तक हो चुका था, लास्ट मैंने क्या पॉइंट बता दें, क्योंकि मैं संयोग ऐसा रहा कि उधर से शायद डिस्कनेक्ट हुआ, मैं तो कंप्लीट 11:55 तक मेरा लेक्चर कंप्लीट किया और जब बंद किया तो पता लगा कि मैसेज आया कि कनेक्ट नहीं है। तो मुझे जरा सा बता देंगे कहाँ तक हो गया था, और सर मुझे टाइम बता दीजिए कितना, 12 o'clock तक 12:15 तक कब कंप्लीट करना है, बस इतना मुझे बता दीजिए। Sir, we have time till 1:15. Okay. And you were explaining about the Tantra Yukti. तंत्र, ओके, थैंक यू। यस, तो जो मेरा टाइटल है रोल ऑफ दिनचर्या, ऋतुचर्या एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक बात कही थी कि चरक संहिता में सूत्र स्थान में चैप्टर नंबर 1 में कोटेशन नंबर 28 में जो बात कही गई कि संवायं च तंग अथवा तंत्रोक्तम विधिमास्थिता, आयुर्वेद में सब कुछ जो बता रखा वो तंत्रोक्त विधि के द्वारा है। और ये तंत्रोक्त विधि क्या है? यही दिनचर्या है, यही रात्रिचर्या है, यही ऋतुचर्या है, और यही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो होते हैं उनके मैनेजमेंट का साधन है। जो उसकी टीका में आचार्य चक्रपाणी ने जहां पर बात कही कि तंत्रोक्तम विधिमिति अपत्य परिहार पथ्य उपादान रूपम, माने अपथ्य का परिहार करना और पथ्य का पालन करना, यही तंत्रोक्त विधि है। और इसी तंत्रोक्त विधि के अंतर्गत डाइट और लाइफस्टाइल सभी चीजें आ जाती है। और डाइट और लाइफस्टाइल के द्वारा न केवल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज अपितु कम्युनिकेबल डिजीज जो हैं उनको भी रोकने में इसका बहुत कुछ योगदान है। प्राय हम सब यही कहते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को तो हमको जो अगर डाइट और लाइफस्टाइल को पूरा ध्यान रखा जाए तो उनको से बहुत अच्छे से बच सकते हैं। लेकिन इस कोविड पेंडेमिक की कंडीशन में आप देख लीजिए कि जिस बीमारी से पूरा विश्व परेशान था उसको रोकने में भी डाइट और लाइफस्टाइल का एक अपना विशेष रोल रहा। और पूरे भारतवर्ष में, न केवल भारतवर्ष में भी तो विश्व में सभी चिकित्सक सभी को यही सलाह देते हुए मिले कि आप डाइट का पूरा ध्यान रखिए, प्रॉपर नींद लीजिए और प्रॉपर व्यायाम कीजिए। तो डाइट, नींद लेना ये लाइफस्टाइल के अंतर्गत आ गया, व्यायाम लाइफस्टाइल के अंतर्गत आ गया। तो आयुर्वेद के जो डाइट और लाइफस्टाइल के प्रिंसिपल्स हैं वो एक सामान्य व्याधि को ठीक करने में ही समर्थ नहीं है, अपितु तो विश्व जिससे परेशान है, जो पेंडेमिक व्याधियां हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, उनमें भी उनका विशेष रोल है। इसलिए दिनचर्या को, ऋतुचर्या को हम सामान्य उसमें नहीं समझे, लेकिन उसका परिणाम तभी मिलेगा जब तंत्रोक्तम विधिमास्थिता, तंत्रोक्त विधि से उनका परिपालन करें। और तंत्रोक्त विधि में नेक्स्ट कोटेशन में आचार्य चरक ने कहा इत्युक्तम कारणम कार्यम धातु साम्यम विहोच्यते, ये कारण के रूप में है। और इन षड कारणों में भी द्रव्य, गुण और कर्म, ये 3 मुख्य कारण हैं। यही दिनचर्या के लिए, ऋतुचर्या के लिए, डाइट के लिए इनका सबसे मुख्य रोल है। तो द्रव्य का, गुण का और कर्म का, अगर 3 चीजों को ध्यान में रख करके हम दिनचर्या का पालन करें तो
इस प्रकार की जो व्याधियां उनसे बच सकते हैं। जैसा कि चरक संहिता में सूत्र स्थान में कहा, नगरी नगरस्यैव रथस्यैव रथीयता स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येषु अविहितो भवेत्। तो यहाँ पर कृत्येषु अविहितो भवेत् जो बात कही गई, मैंने ऊपर तो एक एग्जाम्पल दिया गया नगरी नगरस्यैव वाला, स्वशरीर से मेधावी यहाँ तक भी एग्जाम्पल है, लेकिन इस पूरे में जो प्रिंसिपल बताया गया वो प्रिंसिपल दिनचर्या का है, वही प्रिंसिपल ऋतुचर्या का है। और उन्होंने कहा कृत्येषु अविहितो भवेत्, जो कृत है, जो करणीय है, जो पथ्य है उनका पालन करना, जो अकरणीय है, जो अपथ्य है उनका परित्याग करना, यही दिनचर्या डाइट और लाइफस्टाइल के नियम है। इसी बात को अगर हम देखें तो आचार्य चरक ने जो चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 6 है तस्याशीति अध्याय, उसमें लास्ट में तत्र श्लोका के रूप में कोटेशन नंबर 51 में बोला, ऋताव्रतो नभि सेव्यम असेव्यम यच्च किंचन तस्याशीतीये निर्दिष्टम हेतुमत सात्ममेव च। तो यहाँ पर जो पहला शब्द उन्होंने बोला ऋताव्रतो नभि सेव्यम, माने ऋतुओं में, अलग अलग ऋतु में, चाहे वो हेमंत हो, शिशिर हो, वसंत हो, ग्रीष्म हो, इन ऋतु में क्या चीज सेवनी है, असेव्यम यच्च किंचन, और किन चीजों का पालन नहीं करना है। बस ये दो सिद्धांत अगर ध्यान में रख लिए जाएं तो इन सिद्धांतों के द्वारा दिनचर्या, ऋतुचर्या, डाइट, लाइफस्टाइल सभी आ जाती है। तो अब इनका परिपालन कैसे करना, तो जो ये प्रिंसिपल बताया था तंत्रोक्त विधि का, उस प्रिंसिपल के बाद में आचार्य चरक ने जो नियम बताया था, उस नियम के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि वहां पर इत्युक्तम कारणम कार्यम धातु साम्यम। तो कारण और कार्य के कॉन्सेप्ट को अगर दिनचर्या और डाइट लाइफस्टाइल के साथ देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। वहां पर 9 कारण द्रव्य को हम सभी जानते हैं, खादिन्यात्मा, मनक, कालो, दिशेश्च, द्रव्य संग्रह। तो ये पंच महाभूत हैं, इनको तो आहार के रूप में, आहारो पांचभौतिक, शरीर पांचभौतिक, आहार पांचभौतिक, औषधि पांचभौतिक, ये सिद्धांत का तो हम परिपालन करते ही हैं। जैसा कि आचार्य चरक ने कहा गया, यथा स्वंसम च कृष्णन्ति देहे द्रव्य गुणा पृथक पार्थिवा पार्थिवा नैव शेषा शेषा च कृतस्न। तो उस सिद्धांत को तो बताया, लेकिन जो शेष 4 बचे हैं, मन, आत्मा, दिशा और काल, इनका अपने आप में विशेष महत्व है, जिसके द्वारा हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को रोक सकते हैं। और उसके लिए जब आत्मा के विषय में कहते हैं तो हम आत्मा को तो कहते हैं कि निर्विकार परस्त्वात्मा, लेकिन इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में अगर देखा जाए तो आत्मा का रोल कारण द्रव्यों के रूप में, कारण के रूप में, या धातु साम्य रूपी कारण के रूप में जो है, तो वहां पर उन्होंने बताया आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक, अपने स्वयं के मान से, माने प्रत्येक व्यक्ति के मान से, इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन के रूप में, इंडिविजुअलाइज्ड आहार के रूप में, प्रकृति के रूप में हमको किस सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए, तो वहां पर उन्होंने इसलिए कहा आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक। अब आप देखिए, दिन में या घर में एक परिवार में जब 5-6 लोग रहते हैं तो हर एक को अगर घर में जो भी भोजन बना है उसमें से किसी एक व्यक्ति को वो बहुत ही अच्छा लगता है, कोई एक व्यक्ति कहता है उसके कारण एसिडिटी हो गई, या उनको गैस की प्रॉब्लम हो गई, या जो भी अपने शब्दों में वो कहते हैं, यानी आहार वही है, व्यक्ति के मान से उसका परिणाम चेंज हुआ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो 9 कारण द्रव्य हैं, इसमें आत्मा वाला जो कारण द्रव्य था, जिसको अपन कहते हैं आत्मानम अभिसमीक्ष सम्यक, उसके ऊपर ध्यान देना हमने बंद कर दिया। उसी प्रकार से जो काल है, काल का भी विशेष महत्व है, और उसके द्वारा ही डाइट और लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स के विषय में हम चिंतन कर सकते हैं। और उसमें कहा गया काल भोजनम आरोग्य कराणम, या फिर न आहार वेला अतिक्रमणीय, या आयुर्वेद ने कहा है काले च आरभते कर्म यत् तत् साधयति ध्रुवम। अगर सही समय पर जो भी कार्य प्रारंभ किया जाए, चाहे वो लाइफस्टाइल के लिए, उठने के लिए बोला गया है कि रात्रो जागरणम वृक्षम स्निग्धम स्वप्नम दिवा, सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसकी जगह 9 बजे उठ रहे हैं, तो वो काल का जो है सही परिपालन नहीं हुआ। वो कालेचा आरभते कर्म, सही समय पर आरंभ जो है वो नहीं है। उसी प्रकार से रात्रि में सोने का समय, रात को 1 बजे 2 बजे तक जगते हुए जब काम करता है व्यक्ति, तो वो भी काल का व्यतिक्रम है। तो जो 9 कारण द्रव्य बताए इस तंत्रोक्त विधि के रूप में, तो आत्मा को, काल को, दिशा को, दिशा में अपने स्थान को विशेष महत्व दिया है कि जिस प्रकार से सही स्थान पर अपन भोजन करते हैं, उस स्थान की पवित्रता, उस स्थान की शुचिता, उसको ध्यान में रख करके अगर आप सही भोजन भी कर रहे हैं और शुचिता वाला स्थान नहीं है, तो उसका मन के ऊपर, शरीर के ऊपर आहार का परिणाम एक अलग होता है।
तो उसका भी ध्यान रखना। और इसी प्रकार से मन को ध्यान में रखने के लिए जैसे श्रीमद् भगवद गीता में अलग अलग आहार बता रखे हैं, आयुर्वेद में सात्विक रासिक तामसिक जो गुण बता रखे हैं उनके आधार पर कि इन द्रव्यों को अपन उसके अंतर्गत लेते हैं। तो जैसे कि भगवद गीता में बताया यातयामम गतरसम पूति पर्यूषितम चयत उच्छिष्टमति चा मध्यम भोजनम तामस प्रियम। तो इस प्रकार से मन के विषय में भी सत्व को, रज को, तम को, इनको ध्यान में रखते हुए इन पंचमहाभूत, मन, आत्मा, दिशा और काल, इन 5 कारण द्रव्यों को अगर ध्यान में रखा जाए और उनके अनुसार डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, क्योंकि इसमें दिशा, काल ये लाइफस्टाइल के द्योतक हैं। मन और आत्मा खास तौर से अपन समीक्षा करके जो आहार का भी और विहार का भी दोनों के रूप में ले सकते हैं। और पंच महाभूतों को तो हम आहार के रूप में, शरीर और औषधि के रूप में, दोनों के रूप में ही उनको लेते हैं। तो इस प्रकार से इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्लाइड चेंज करेंगे उधर से। नेक्स्ट स्लाइड। यस, अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान में एक बहुत अच्छी बात कही, और इसको अपन आहार के नियमों में अगर देखें, जीर्ण हितम मितम चा, जो जीर्ण का अगर आहार का ध्यान रखा जाए तो यहाँ पर आहार को जीर्ण आहार और उसकी जो संकल्पना मुख्य है कि आहार को कितनी बार लेना, कितनी मात्रा में लेना और कब लेना। और इसलिए आचार्य चरक ने शारीरिक स्थान में कह दिया था कि नित्यम हिताहार विहार सेवी। तो हितकर आहार विहार के रूप में जो भवती अरोगा की बात करी उनने कि आप तो सेवी च भवत्य अरोगा, तो वहां पर कब आहार लेना, काल को ध्यान में रखना, कौन सा आहार लेना और कैसे आहार लेना, इन तीनों नियमों को जो लाइफस्टाइल के अंतर्गत आता है। और इसी चीज को अगर आज आधुनिक विज्ञान के समय में हम देखें तो पिछले 50 साल 60 साल से उन्होंने एक विशेष रूप से आहार की संकल्पना स्थापित की। और मॉडर्न साइंस ने, एलोपैथिक साइंस ने कहा कि हमारी डाइट जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सब चीजें होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने सभी जगह वो किया है कि आपको डाइट में ध्यान रखना चाहिए। अभी एक सर्वे आया था टाइम्स ऑफ इंडिया का, उन्होंने उसमें कहा था कि इंडियन थाली जो है इसके अंदर इन सब चीजों का समावेश हो जाता है। उन्हें बेस्ट डाइट के रूप में इंडियन थाली को उन्होंने सर्वे के रूप में बताया था, क्योंकि अलग अलग फास्ट फूड है या ये चीजें, उनमें वो सब चीजें नहीं आ पाती हैं। लेकिन आप देखिए आज से 3000 वर्ष पूर्व प्रोफेसर आत्रेय ने, महर्षि अग्निवेश ने या उसके बाद में आचार्य चरक ने, इन सब ने जो आइडियल डाइट की बात करी तो वहां पर उन्होंने जो बात बताई थी, आज आधुनिक विज्ञान वाले जो बात कर रहे हैं वो सभी चीजों का समावेश उसमें था। और उसके लिए उन्होंने यहाँ तक कहा था तच्च नित्यम प्रयुंजित, इनका नित्य प्रयोजन सेवन करना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने बताया था षष्टिका शाली मुदगाश्च सेंधव आमल के यवान अंतरिक्षम पयस्सर्पी जांगल्यम मधुचाम्य से। अगर इनमें एक एक द्रव्य को देखें तो एक रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रोटीन का रिच सोर्स है, एक फैट जो है सफिशिएंट मात्रा में उसमें है, उसी प्रकार से मिनरल्स, विटामिन, ये सभी चीजें इस कॉम्बिनेशन के साथ आ गया। तो आयुर्वेद की जो आहार की संकल्पना थी हम उसको अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी नित्य सेवनीय क्या है, नित्य असेवनीय क्या है, इनका ध्यान रखे बिना हम संकल्प के बिना विकल्प को जब दे देते हैं तब नियम जो है वो टूट जाते हैं। तो उनका परिपालन हमको करना चाहिए। तो वो सभी संभव है जब हम सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित, अगर शरीर का परिपालन करें सब कुछ छोड़ करके तभी वो हो सकता है, अन्यथा उसका जो है परिपालन संभव नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद में एक और नेक्स्ट स्लाइड। ऋतुचर्या की बात जब आती है तो आयुर्वेद में ऋतुचर्या का कॉन्सेप्ट जो आचार्य वाग्भट ने बताया, और वहां पर उन्होंने कहा कि मास राशि स्वरूपाख्यम ऋतोर लक्षण त्रय, इन 3 लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो मास हो, राशि हो और स्वरूप हो। अब आप आज प्राय हमारे इतने संपर्क में मास तो रहा ही नहीं कि चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़ कौन सा मास है, या राशि में जो अपने आप बताई गई है उन राशियों का भी अपने को ध्यान नहीं रहता कि कुंभ है, मीन है, मकर है, मेष है, किस पे सूर्य आ रहा है और उस सूर्य के आधार पर कौन सा लक्षण होता है। पर मेन लक्षण जो बता रखा कि मास स्वरूपम, जो ऋतु का स्वरूप होता है उस स्वरूप के अनुसार ऋतु का पालन करना, ऋतु के नियमों का। और वो स्वास्थ्य के लिए इसलिए बता रखा है क्योंकि हमारे यहाँ जो बताया गया आयुर्वेद में, उन्होंने बताया चय प्रकोप प्रश्मा वायु ग्रीष्मा दिशु, जो संचय है, प्रकोप है, प्रसर है, इन चीजों को आयुर्वेद में बता रखा। तो इस चय प्रकोप प्रश्मा को अगर ध्यान में रखा जाए तो हमारे यहाँ जब जब दोषों का संचय है, प्रकोप है और प्रसर है, उस अवस्था में उनका जो निर्हरण का सिद्धांत बता रखा कि वायु ग्रीष्मादिशु त्रिशु वर्षादिशु तस्य श्लेष्मणा शिशिरादिशु, ये जो लक्षण बता रखा कि चैत्र मास में
कफ का निहरण करना, जब शरद ऋतु रहती है, नवरात्रि से पहले पित्त का निहरण करना, वर्षा ऋतु में वात का निहरण करना। तो ये ऋतु के चक्र को जान करके दोषों के संचय की जो अवस्था है, चय की अवस्था है, प्रकोप की अवस्था है, उस अवस्था में दोष का निहरण करना सामान्य रूप से स्वस्थ रहने के लिए। और उसके बाद में अगर किसी व्याधि की संप्राप्ति है, पैथोजेनेसिस है, और उसके साथ में व्याधि के लक्षण आदि आ रहे, तो उनके अनुसार वहां पर अलग अलग पंचकर्म विधान बता रखा, शोधन की प्रक्रिया बता रखी है, तो उनका परिपालन करना। तो इस प्रकार से ऋतु को समझने का मुख्य उद्देश्य जो है, वहां पर ऋतुजन्य होने वाले दोष, उनका संचय, प्रकोप, प्रसर, और इसलिए आप जगह जगह जहां भी देखें, चरक संहिता सूत्र स्थान में उन्होंने कहा माधवस्य प्रथमे मासे, नभस्य प्रथमे पुनः, सहस्य प्रथमे चैव हारयत दोष संचय, माने दोषों का संचय जो होता है उसको दूर करना। और इसीलिए जहां पर षड्विध क्रियाकाल कहा, उन्होंने बोला संचय भता दोष, संचय अवस्था में भी अगर दोषों को दूर कर दिया जाए तो व्याधि की उत्पत्ति नहीं होगी। तो व्याधि का प्रतिबंध कब होता है, जब ऋतुचर्या का सही पालन करें। तो ऋतुचर्या केवल वही नहीं है कि हमको केवल ये आहार विहार लेना है, ऋतुचर्या वह भी है कि हमको किस समय किस प्रकार का शोधन करना है, और उस शोधन में किस मास में। अब आजकल थोड़े समय से होने लग गया, वासंतिक वमन कई लोग करवाने लग गए, शारदीय विरेचन कई लोग करवाने लग गए। अभी बस्ती का अभी भी खैर इतना ज्यादा प्रचलन कम है, व्याधि की अवस्था में जरूर उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आयुर्वेद की प्रक्रियाएं ऋतुचर्या के माध्यम से, दिनचर्या के माध्यम से अगर हमारे जीवन में स्थान लेती रहेगी, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य का अनुवर्तन इनके द्वारा होता रहेगा। डाइट और लाइफस्टाइल का अपने आप में बहुत महत्व है। और अब मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद या दिल्ली के जो तीनों चिकित्सालय हैं, चाहे वो चौधरी प्रकाश चरक संस्थान हो, या आयुर्वेद तिबिया कॉलेज जो है करोल बाग हो, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सरिता विहार हो, इन तीनों ही संस्थान जो है CHC थे, कोविड हेल्थ सेंटर थे, और यहाँ पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट होते थे। और मैं आपको कहूंगा कि डाइट और लाइफस्टाइल के नियमों का पालन करके, मैंने उनको क्या डाइट देना, ये डाइट शेड्यूल वो करके, और उनको प्रतिदिन सुबह क्या व्यायाम करवाना, कब उनको सोने के लिए बोलना, कब उठना, किस प्रकार से उनको प्राणायाम आदि कराना। तो ये डाइट और लाइफस्टाइल के नियम से जो औषधियां कोविड पेशेंट को दी गई, उनका परिणाम इतना अधिक अच्छा रहा कि पेशेंट यहाँ आने के बाद में कोविड पॉजिटिव भी ये भूल जाते थे कि वो पॉजिटिव है। तो ये एक उनके मन से भय निकालना, ये किसके द्वारा, मात्र डाइट और लाइफस्टाइल के नियमों के पालन से। तो आप सोचिए, जो डाइट और लाइफस्टाइल के नियम कोविड पेंडेमिक जिस वैश्विक महामारी के डर को भी मन से निकाल सकता हो, तो फिर सामान्य व्याधियों की चिकित्सा करने में तो वैसे भी प्रभावी है। लेकिन हम आयुर्वेद के नियमों को इतना सामान्य समझते हैं, कई बार तो हमको खुद को विश्वास नहीं होता कि इससे ठीक हो जाएगा क्या, इसलिए परिपालन नहीं करते हैं। तो आयुर्वेद के सिद्धांतों में अपनी स्वयं की खासतौर से श्रद्धा रखें और लोगों को भी उसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि इसलिए अपने यहाँ कहा गया आचार्य चरक ने शारीर स्थान में कि आत्मा ने एवं मन्येता कर्तारम सुख दुख कहो, सुख और दुख का कर्ता अपन स्वयं उसके लिए है। तो हम स्वयं जब तक उसका परिपालन नहीं करेंगे, उसको नहीं देखेंगे, तब तक उसका परिणाम नहीं मिलेगा। यहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन के रूप में, पुरुषम वृक्ष के रूप में उनका परिणाम बताया गया है, उनका वर्णन किया गया है, और उनका परिपालन जब तक हम सही ढंग से नहीं करेंगे, तब तक उसको सही रूप से चरितार्थ नहीं कर सकते। अब डाइट और लाइफस्टाइल के रूप में हमारी दिनचर्या जो है, उसके ऊपर विशेष मैं बात नहीं करूंगा, प्रोफेसर प्रदीप जी ने उसको बहुत अच्छे से बता दिया। लेकिन उसका परिणाम, जो आज के युग में उसका क्या परिणाम हो सकता है, उस चीज को मैं खास तौर से बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे यहाँ पर बताया गया कि इनके, तो इन परिणामों में मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारी दिनचर्या का एक मुख्य अंग है, उसमें हम नस्य का एक भाग बता रखा, दूसरा एक अभ्यंग का बता रखा, एक व्यायाम का बता रखा। तो हमारे यहाँ नस्य का जो परिणाम है, जो अभी दिल्ली में करीब 80,000 पुलिस पर्सन जो है, उनको कोरोना के काल में एक विशेष आयु रक्षा किट दी गई। और जो पुलिस पर्सन खासतौर से फ्रंट लाइन में, रेड जोन में जो ड्यूटी दे रहे थे, उन सबको ये दिया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे देश के पुलिस पर्सन जो ड्यूटी पे थे उनमें, और दिल्ली के पुलिस पर्सन 80,000 जो थे, उनका कंपैरिजन किया गया, तो दिल्ली पुलिस पर्सन में कोविड पॉजिटिव रेट बहुत कम मिला, जबकि दिल्ली में जनरल पब्लिक में कोविड बहुत ज्यादा था। और उसका परिणाम था जो आयु रक्षा किट, उसमें मुख्य रूप से था
अणु तेल का नस्य, मैंने प्रतिदिन घर से बाहर निकलो उससे पहले नस्य करके निकलो। उसके साथ में रसायन द्रव्य का सेवन, तो रसायन द्रव्य के सेवन में भी केवल संशमनीवटी और च्यवनप्राश 2 चीजें थी। तो चाहे वो आमलकी हो या गिलोय हो और अणुतेल नस्य हो, जो सामान्य चीजें हैं, इनके द्वारा वैश्विक महामारी को, इस कोविड पेंडेमिक में भी इसके परिणाम इतने अच्छे मिले। तो आयुर्वेद की जो लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद की जो डाइट की संकल्पना है, ये आज भी उतनी ही प्रभावी है। और इसीलिए आयुर्वेद की डाइट का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे यहाँ हमारी संस्कृति के साथ चल रहा है। अब देखिए कि अभी जो कोविड की कंडीशन थी, आयुर्वेद घर घर तक था। यहाँ पर दिनचर्या और ऋतुचर्या की हम जब बात करें तो हर एक घर तक वो रहा, और उसका परिणाम ये रहा कि हॉस्पिटल में, जहां पर मैं बाकी चिकित्सालय की बात नहीं करूं, केवल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की अगर बात करूं, तो जहां प्रतिदिन 2000 या 2200 तक पेशेंट आते हैं, उन पेशेंट में करीब करीब 30 से 40% पेशेंट तो केवल इसी प्रकार से प्रॉपर डाइट नहीं लेने के कारण, सही समय पर सोने नहीं के कारण, या फिर उनकी जो लाइफ स्टाइल जिस प्रकार की सेडेंट्री है उसके कारण जो डिजीज होती है वो आते हैं। और इस कोविड पेंडेमिक की कंडीशन में 4 महीने 5 महीने तक जब उन्होंने केवल घर का खाना खाया, देखिए डाइट का कितना प्रभाव होता है। सिर्फ मात्र भोजन घर का किया, एक प्रिंसिपल चेंज किया, उसके कारण हॉस्पिटल से 30% पेशेंट जो है वो आना बंद हो गए। मैंने 30% पेशेंट का जो परिणाम है वो मात्र घर का ताजा खाना खाने के कारण, जब आयुर्वेद में बताया गया उष्णम अश्नीयात, अब इस प्रिंसिपल को हम फॉलो नहीं करते, हमको लगता है कि इससे क्या होगा। लेकिन आज आप स्वयं एविडेंस के साथ में देख सकते हैं कि डाइट के केवल एक प्रिंसिपल को, और वो उन्हें चॉइस से नहीं किया था, वो बाई चांस करना पड़ा था, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि बाहर जाकर के स्ट्रीट फूड खा लें या फिर बाहर जाकर के होटल में कोई खाना खा पाए, क्योंकि पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था। उस अवस्था में सिर्फ घर पे जो खाना बन रहा है वो भोजन करने के कारण हॉस्पिटल से 30% पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए कि उनको आने की जरूरत ही नहीं लगी। तो फिर आप देखिए कि आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल हैं कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इस प्रकार से हम छोटी छोटी चीजों को, और इसी सात्मता को, ऋतु सात्म्य को, चेष्टा को, आहार को, ऋतु संधि को, इनका ध्यान में रख करके, विरुद्ध आहार आदि को ध्यान में रख करके अगर हम आगे चलें, आज एक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, उसमें खास तौर से अम्ल और मधुर का एक साथ सेवन। अब देखिए जब कोई बड़ी कार्यक्रम होता है, पार्टी होती है, तो या तो दही का रायता, पाइनएप्पल रायता, या फिर अपन दही भल्ले, या जिसको दही बड़े बोलते हैं, उड़द की दाल से जो बनाते हैं, वो मेन डिश के रूप में, और उसी के साथ में रसमलाई या दूध से बनी हुई जो है वो दोनों चीजें रहती है, और बड़े प्रेम से हम सभी दोनों चीजों को खाते हैं। आयुर्वेद ने ये जरूर कह दिया, विरुद्धम विततम भवेत्, विरुद्ध जो है वो उन लोग में जिनकी अग्नि प्रदीप्त है, खरा आहारा दीप्ताग्नय महोदरा वाली जो बात कही गई है उनको छोड़ दें, पर वो तो एक नियम बता रखा है, उस नियम को पालन करना, तो अपने को एक विरुद्ध का सेवन नहीं करना है, लेकिन उस नियम को हम विरुद्ध का सेवन करते समय कर देते कि वो अपने लिए नहीं है। लेकिन अगर इन नियमों को भी थोड़ा बहुत और बता दें तो हॉस्पिटल से और थोड़े पेशेंट कम हो जाएंगे। मैं आपको इसका दिनचर्या का और ऋतुचर्या का और डाइट लाइफस्टाइल का महत्व एक बात से और बताना चाहूंगा। अभी भारत सरकार ने अपना जो कहना चाहिए कि हेल्थ का बजट था, वो बजट पेश होने वाला था, उससे एक दिन पहले बजट पे चर्चा रखी थी, और उस बजट पे चर्चा में लोकसभा टीवी के ऊपर वो चर्चा थी। उसमें प्रोफेसर MC मिश्रा जी जो एम्स के पूर्व डायरेक्टर हैं दिल्ली के, वो थे। तो उनसे उसने एंकर ने पूछा कि भाई किस प्रकार से हम हेल्थ के बजट को इस कोविड की कंडीशन में, प्राय आर्थिक संकट भी सब जगह थे, तो फिर भी इस बजट को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आप क्या देखते हो। तो प्रोफेसर MC मिश्रा जी ने एक बात कही, वो मुझे इतनी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि देखिए बजट तो गवर्नमेंट जो भी बढ़ाएगी जितना बढ़ाना है चिकित्सा के लिए, लेकिन मेरी एक बात कहना है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आयुर्वेद के नियम है, दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, आहार के नियम है, क्या डाइट लेना है क्या नहीं लेना है, अगर इनको भी समाज तक पहुंचा दें तो हमारा बहुत कुछ, हम हेल्थ के बजट को कम, मतलब हमको कम खर्च करना पड़ेगा, हमको पैसे कम करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पेशेंट ही नहीं आएंगे। तो आप देखिए एम्स का डायरेक्टर अगर वो बात करता हो, तो हम आयुर्वेद वालों को तो गर्व होना चाहिए कि हमारे इसमें जो भी प्रिंसिपल बता रखे हैं, डाइट लाइफस्टाइल बता रखी है, अगर उनका पालन करना हम भी पालन करना शुरू कर दें। Hello. Excuse me, sir. Your voice is not audible. ये बीच में आप उधर से म्यूट कर देते हैं मुझे कोई।
क्योंकि मेरी तरफ से कंटिन्यू चल रहा है। No, sir. There is some. चलो ठीक है। तो अभी कहाँ पे, कब से म्यूट हो गया था? कोई बताएंगे लास्ट में कहाँ से म्यूट हो गया था? ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हेलो, जो भी ऑपरेटर हो थोड़ा सा ध्यान रखें, कम से कम म्यूट नहीं हो। पिछले वाला भी मेरा पूरा लेक्चर कंप्लीट 12 o'clock तक मैंने लेक्चर कंप्लीट किया और उसके बाद में इसमें मैसेज आया कि आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इसलिए प्लीज थोड़ा सा आप उधर से ध्यान रख लें, कि वो तो मुझे तुरंत बता दें कि ये पता नहीं इसमें इस वाले से इसमें ही ज्यादा हो रहा है, नहीं तो गूगल मीट में और उनमें इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ज्यादातर। सर आपका वीडियो अगर बंद हो जाए तो बैंड और वहां से वॉइस इंटरप्ट नहीं होगा। अभी वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? हेलो, यस सर, यस सर, क्लियर है? यस सर। जब भी हो तब मुझे तुरंत बता दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि डाइट और लाइफस्टाइल के सर रूप में। वॉइस आ रहा है? जी, ओके। तो मेरा ये कहना था कि प्रोफेसर एमसी मिश्रा जी का मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एम्स के भूतपूर्व डायरेक्टर ने जब ये कहा कि आयुर्वेद की चीजों को अगर हम आगे बढ़ाएं, अगर समाज में बढ़ाएं और उनको अगर डाइट और लाइफस्टाइल के लिए सबको अगर ये करें, तो बहुत कुछ जो हमारा बजट है वो अपने आप बच जाएगा, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप बच सकता है। तो आज समाज में जागरूकता होती जा रही है कि आयुर्वेद के जो डाइट लाइफस्टाइल के नियम है उनका परिपालन करना चाहिए, और ये बात लोगों को कोविड के इसमें बहुत अच्छे से समझ में आई है। और अगर जिन लोगों ने घर पे रहकर भी कोविड का ट्रीटमेंट अपना किया है, उन्होंने डाइट और सही ढंग से अगर उनका परिपालन किया है, तो वो ज्यादा अच्छे ठीक हो गए। और 3 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जो डाइट और लाइफस्टाइल के अंतर्गत है। इस कोविड की कंडीशन में पूरे विश्व में अगर 3 बातें सबको बताई गई, तो उसमें कहा गया एक तो प्रॉपर भोजन लीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए और प्रॉपर व्यायाम कीजिए। तो इन चीजों को, तीनों ही चीजें आयुर्वेद की डाइट और लाइफस्टाइल के अंतर्गत है, जिससे हम कोविड पेंडेमिक से भी लड़ पाए हैं। तो फिर बाकी छोटी मोटी व्याधियां जो होने वाली है उनसे तो हम अपने आप को बिल्कुल अच्छे से बचा ही सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका हम ध्यान रखें। आयुर्वेद की एक प्रक्रिया थी जिसको हम बड़े अच्छे से खास तौर से उसका परिपालन करते थे, और उस प्रक्रिया में हमारे यहाँ पर जो है भोजन के बाद के नियम बताए गए थे, और उन नियमों का जो है खास तौर से एक अलग पालन करना था, पर उन का नियमों का पालन हम कम करते हैं। जो ऋतु आदि में जो बताया था कि ऋतु रंत्यादि सप्ताह, ऋतु संधि रीति स्मृता, तो ये जो अंतिम सप्ताह और आने वाला सप्ताह है, इनके नियमों का पालन आजकल प्रायः बंद कर दिया है। कि जिस ऋतु में, चाहे वो हेमंत ऋतु हो, शिशिर ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, तो एक ऋतु के बाद में जब दूसरी ऋतु प्रारंभ होती थी, तो उसमें ग्रीष्म, क्योंकि जो काल है 2 चीजों पर निर्धारित था, शीत और उष्ण के द्वारा, और इन शीत और उष्ण का ध्यान रखना जब ऋतु परिवर्तन होता था, और वो ध्यान हम नहीं रखते, इसलिए सहसा त्यागशीलनाथ असात में जाहि रोगासु, जो व्याधियां उत्पन्न होने लगी, वो उसका मुख्य कारण था। और खास तौर से जब विसर्ग काल में सूर्य का प्रभाव कम होने के कारण, और जो आदान काल है उसमें चंद्र का प्रभाव कम होता है, सूर्य का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, तो इन दोनों ही अवस्थाओं में स्निग्धश्च, स्निग्ध आहार, अम्ल आहार, मधुर, लवण, इन रसों का सही रूप से ध्यान रख करके, जब शीत ऋतु है और जब उष्ण ऋतु है, या फिर अपने यहाँ जो कहा गया है कि स्वभाव विसर्गे बलिना प्राय स्वभावादि गुरु क्षमा, विसर्ग काल में हमको खास तौर से जब हमारी अग्नि प्रदीप्त रहती है, प्रोफेसर एस.एस. सावरीकर जी ने प्रारंभ में ही शुरुआत करी थी, तब उन्होंने अग्नि का महत्व बताया था, और वो अग्नि का महत्व ऋतु के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, कि चाहे वो हेमंत ऋतु हो, चाहे शिशिर ऋतु है, हेमंत शिशिरो तुल्य, दोनों ऋतुएं तुल्य है। इन दोनों ऋतुओं में हमारी अग्नि प्रबल रहती है, और उस प्रबल अग्नि के समय हमें खास तौर से गुरु द्रव्य, स्निग्ध द्रव्य, मधुर द्रव्य, उनका सेवन करना शरीर के लिए हितकर होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उनका पालन नहीं करते हुए अगर उष्ण काल में जब सूर्य बलवान है उस समय भी इन द्रव्यों का सेवन करते हैं, तो विविध प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होना निश्चित है। इसलिए अपने यहाँ कहा गया आदौ अंते च दौर्बल्यम, विसर्गादान यो नृणाम मध्य मध्य बलम त्वंते शिष्टम अग्रे निर्दिशेत। तो इसलिए शीतकाल उत्तम बल रहता है, उष्ण काल हीन बल रहता है, शरद और वसंत में मध्यम बल रहता है। तो इस प्रकार से व्याधि का प्रादुर्भाव शीतकाल में थोड़ा अल्प रहता है, क्योंकि बल उत्तम है, तो उस समय हम शरीर का ध्यान उस प्रकार से रख सकते हैं। लेकिन उष्ण काल जो है उसमें हीन बल रहता है, इसमें सबसे ज्यादा व्याधियों की उत्पत्ति होती है।
चाहे वो वृष्टि माने वर्षा काल हो, ग्रीष्म और वर्षा, ये 2 ऋतुओं के समय व्याधियां सबसे ज्यादा होती है। तो उस समय हमें अपने शरीर का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए और इसीलिए अपने यहाँ जो शोधन की प्रक्रिया बता रखी है, दोषों के निर्हरण की प्रक्रिया बता रखी है, उनका परिपालन हमको करना चाहिए। और मध्यम काल जो रहता है शरद और वसंत काल में, उस मध्यम काल में हम मध्यम व्याधियों का प्रयोग उत्पत्ति होती है तो उनको भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इन सभी ऋतुओं में, चाहे वो खास तौर से हमारे यहाँ जो बताया गया ना कि वर्जियत अन्नपानानि, प्रत्येक ऋतु में एक बात सबसे ज्यादा बताई, माने ऋतु के साथ में आहार का विशेष महत्व है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कुंभकार पवन न्याय बता रखा और उसके द्वारा अग्नि बढ़ती है उसको बता रखा। उसी प्रकार से खास तौर से स्निग्ध द्रव्य जो है उनका अधिकार पूर्वक सेवन जो है ये उस वाली ऋतु में बता रखा जब कुंभकार पवन न्याय से अग्नि की वृद्धि होती है। और वहां पर बता रखा वर्जियत अन्नपानानि वातलानि लघु नीचे, लघु आहार का निषेध किया गया कि उस ऋतु में आप गुरु आहार का सेवन कर सकते हैं। और प्रवातम प्रमिताहारम मुदवंतम हिमागमे, हिमागम के रूप में जब खास तौर से हेमंत और शिशिर ऋतु है उस समय गुरु और स्निग्ध द्रव्यों का सेवन करना। और जिस समय उष्ण काल है, बलहीन है, उस समय हम लघु भोजन करना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर ज्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं। शिशिर ऋतु जब आती है तो आचार्य ने बड़े अच्छे से बताया कि कटुतिक्त कषायानि, हमारे जो षड रस हैं उन षड रसों को किस किस ऋतु में प्रधानता देना, लेकिन प्रायः इन नियमों को हम परिपालन नहीं करते हैं। और वहां पर आचार्य ने स्वयं कहा है कटुतिक्त कषायानि, शिशिर ऋतु का जब वर्णन आता है तो वहां पर उन्होंने बताया वातलानि लघूनि च वर्जयत अन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च, जिस ऋतु में हम शीतल द्रव्यों का सेवन कर रहे थे वहां पर जब ये आ जाती है ऋतु तो शिशिरे शीतलानि च वर्जयत अन्नपानानि, तो हर एक ऋतु में कब शीतल, तो 365 डेज कुछ न कुछ ठंडी चीजों का सेवन तो करते ही। तो उन चीजों को अगर हम थोड़ा सा हमारे इसमें मॉडिफिकेशन करें तो उसके द्वारा व्यक्ति स्वस्थ बड़े अच्छे से रह सकते हैं। और इसका मुख्य कारण जो है वो है वसंते निचित श्लेष्मा। अब जब हम श्लेष्मा का संचय होता है और उसका अगर चैत्र मास में माधवस्य प्रथमे मासे, प्रथम मास में अगर उसका निर्हरण कर देते वमन के द्वारा, तो फिर कफ के द्वारा कायाग्नि बाधते रोगास, कायाग्नि में मतलब शरीर में विविध प्रकार की व्याधियां उत्पन्न ही नहीं होगी। पर वो कब नहीं होगा, जब हम वसंत ऋतु में वमन के द्वारा उसका निर्हरण कर दें, अन्यथा अलग अलग व्याधियां उत्पन्न होगी। और उसी समय अगर हमने गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा स्वप्नम च वर्जयत, गुरु है, अम्ल है, स्निग्ध है, इन द्रव्यों का सेवन किया और दिवा स्वप्न भी किया तो अलग अलग व्याधियां उत्पन्न होना निश्चित है, होना ही। उसी प्रकार से वर्षा आदि ऋतु में हमें कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से जल का। और व्यायामम आतपम चैव व्यायाम छात्र वर्जित, एकमात्र ऋतु ऐसी है जिसमें व्यायाम के लिए, आतप के लिए व्यायाम को अल्प मात्रा में करें, तो बाकी ऋतुओं की अपेक्षा इसमें ध्यान रखें तो उससे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी ऋतुओं में, शरद ऋतु को अगर देखा जाए तिक्तस्य सर्पिषपानम, विरेको रक्तमोक्षणम, विरेचन कराएं, रक्तमोक्षण करें, ये चीजें हमारे डेली रूटीन में हमारे जीवन का भाग बन जाए, तब दिनचर्या और ऋतुचर्या जो है वो डाइट और लाइफस्टाइल ये सब चीजें किसी प्रकार की व्याधि को उत्पन्न नहीं होने देगी, अन्यथा मात्र ग्रंथ में रहेगा। और ग्रंथ में हम बड़े अच्छे से उनको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कह देंगे कि आयुर्वेद में ये सब कुछ संभव है, मात्र ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उनका अगर परिणाम देखना है तो स्वयं एविडेंस के रूप में उनको हमको खुद को देखना पड़ेगा रोज। तो इसी प्रकार से हेमंत आदि सभी ऋतुओं में वात पित्त कफ को, इनको दोषों को, निर्हरण को, इनको ध्यान रखें। और कॉमन कॉज जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के हैं उनमें से मेन अगर हम देखें तो वो लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आज यस, ये जो स्लाइड चल रही है सामने, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ये मेन कारण है। ये हमारी जो लाइफ स्टाइल है सबसे ज्यादा जो आजकल चेंज हुआ है उसमें। उसके बाद में सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई, उसके साथ में अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, हमारे जो नियम है वो सब हमने छोड़ दिए। और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जो है लाइक जस्ट एल्कोहल, ड्रग, स्मोकिंग, ये सब चीजें सामान्य चीजें हैं। इन सब के प्रति अगर हम जागरूक रहें तो निश्चित रूप से हम इनसे स्वस्थ रह सकते हैं। और जो अगर हम देखें कि डिसऑर्डर्स जो हैं इनको अगर देखा जाए तो जैसे अश्मरी को हमने देखा, प्रायः जितनी व्याधियों के निदान हैं
उन निदानों को देखिए तो उसमें मैक्सिमम बस डाइट और लाइफस्टाइल के निदान बता रखे हैं। जहां आमवाद की मुख्य चर्चा करते हैं तो उन्होंने बोला स्निग्धम ही भुक्तवतो अन्नम व्यायामम कुर्वतस्तथा। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्निग्धन और व्यायाम ये दोनों निदान के रूप में हुआ। केवल कब उसको करना ये ध्यान नहीं रखा। तो जो व्यायाम शरीर के लिए सबसे ज्यादा हित करे वही व्यायाम आमवाद जैसी व्याधि की उत्पत्ति का कारण है। उसी प्रकार से लाइफस्टाइल में अगर हम देखें तो इनमें चाहे वो डायबिटीज हो, कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स हो, सीओपीडी के पेशेंट हो, तो इन सबको बैलेंस डाइट के द्वारा, बैलेंस लाइफस्टाइल के द्वारा इनको हम ध्यान रख सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। अर्श में आप देख लीजिए शीतोदक स्पर्श, शीत जल को उसमें वहां पर बता रखा है। उसी प्रकार से अगर किसी प्रकार की नेक रिजिडिटी या मन्यास्तंभ आदि है, द्विवास्वप्न के कारण उत्पन्न होती है। प्रमेय में तो बता ही रखा द्विवास्वप्न है, नवीन अन्न का सेवन है। ये बहुत ही प्रमेय को अगर हम देखें डायबिटीज को, तो डायबिटीज के सामान्य कारण में बता रखा कि नवीन अन्न का सेवन, नवान्न पानम गुण वेकृतम च। नवीन अन्न का आप देखिए गांवों में भी पहले क्या परंपरा थी कि जो भी चाहे चावल हो, धान्य हो या गेहूं हो, वो जब नए आते थे तो उनको कम से कम 6 महीने तक घर में अलग कोठी में भर के रखते थे, उसके बाद में उनका उपयोग करते थे। पर हम जैसे जैसे आधुनिक बने, बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड बन गए और हमारे पास में ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, बड़े बड़े मॉल हुए, तो हम जाते हैं 5 kg का जो है वो फ्लोर का पैकेट ले आते हैं या 10 kg का ले आते हैं। और वो भी कब आता है, जैसे गेहूं नए आए उसी समय बिल्कुल फ्रेश जो है वो गेहूं का आटा मिलता है। जबकि आयुर्वेद ने कहा नवान्न पानम गुणवे कृतम च प्रमेय हेतु कपकृच्च सर्वम। तो नवीन अन्न पान का अगर परित्याग किया जाए और आस्यासुकम स्वप्न सकम में दधी आदि का सेवन जो बता रखा, वो परिवारों में अगर कहीं जो है वो प्रमेय के पेशेंट है घर में, चाहे माता पिता हो कोई भी हो, तो उनको अगर सिर्फ ये डाइट और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन कर दें तो वो अपने आप को प्रमेय से बचा सकते हैं। उसी प्रकार से हृदय रोग वाली जहां बात आती है, तो हृदय रोग हो चाहे वो कैंसर हो, उन सब में इन चीजों को बता रखा है। तो पथ्य आहार जो है, ध्यान है, निद्रा है, व्यायाम है। WHO ने भी यही बात कही कि कैंसर के पेशेंट को अगर वो प्रॉपर पथ्य आहार का सेवन करे, निद्रा में अपने तो चिंता चिता समाप्रोक्ता, चिंता जो है चिता के समान है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहे, जैसा कि अभी प्रोफेसर प्रदीप जी ने बात कही थी। व्यायाम का बराबर ध्यान रखें, उसी प्रकार से खासतौर से स्ट्रेस फ्री रहे व्यक्ति, तो अच्छे से वो रह सकता है। हेलो। उसी प्रकार से ये अलग अलग जो व्याधियां हैं, उन व्याधियों के निदानों को अगर देखा जाए तो प्रमेय में तो दिवास्वप्न और नवान्न पानम को अपने देख लिया। उसी प्रकार से व्यायाम आदि, उद्वर्तन, त्रिफला, इनका ध्यान रखना। लेकिन हाइपरटेंशन में उष्ण, अम्ल, विदाही, लवण, इनका सेवन ज्यादा करना, इनके कारण व्याधि की उत्पत्ति ज्यादा होती है। और उसी आहार में अगर हम लवण वर्जित करें, थोड़ा मेद रसायन का सेवन करें, व्यायाम का थोड़ा ध्यान रखें, तो इनके द्वारा हम हृदय रोग जो है उनसे व्यक्ति को बचा सकते हैं। तो रोल ऑफ दिनचर्या एंड ऋतुचर्या इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन जो है उसको बड़े अच्छे से हम कर सकते हैं कि आहार में खास तौर से उष्ण, अम्ल और विदाही, इन चीजों का वो करें। और जैसे कि अम्ल रस है, गाढ़ी आदि का प्रयोग हम करते हैं, रसायन योग का सेवन करते हैं, तो उस प्रकार से हम हृदय का ध्यान रख सकते हैं। उसी प्रकार से स्थूल्य जब आता है, स्थूल्य व्याधि में हमारे यहाँ बता रखा देहाव्रतो यथा आहार तथा स्वप्न सुखो मता। तो इसमें स्वप्न और आहार जो है ये स्थूल्य के लिए विशेष रूप से बता रखे हैं। और इनके अंतर्गत अगर हम स्थूल्य में आहार का, निद्रा का और व्यायाम का, इन 3 चीजों का केवल सही ढंग से ध्यान रख लें तो हमारी दिनचर्या के रूप में या डेली आहार और विहार के रूप में इस व्याधि से हम बड़े अच्छे से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से केवल ये तो एग्जाम्पल के रूप में एकाध व्याधि के रूप में बताया है, लेकिन प्राय सभी व्याधियों को जब हम देखते हैं तो उन सभी व्याधियों में खासतौर से व्यायाम और तीक्ष्ण, जैसे कि हृदय रोग में भी आप देखिए चिंता को विशेष रूप से उसका कारण बताया है। तो सामान्य लाइफ स्टाइल में अगर चिंता को हमारे उसमें से दूर कर दिया जाए, और चिंता को दूर करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें बता रखी है। आप देखिए कोविड की कंडीशन थी, कोविड पेंडेमिक में अगर किसी के परिवार में कहना चाहिए कि देव योग से अगर किसी को कोविड हुआ, उनके परिवार का कोई व्यक्ति चला गया, तो उस व्यक्ति को इतना ज्यादा स्ट्रेस या चिंता रहती है कि आगे उसको अपना काम करना भी बड़ा वो रहता है। अगर उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति ये कहने वाला मिल जाए कि आप चिंता मत करिए, मैं हूं,
मतलब एक बड़े व्यक्ति का आपके कंधे पर सिर्फ इतना हाथ हो कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसकी आधी से ज्यादा चिंता समाप्त हो जाती है। तो ये केवल हृदय रोग के लिए नहीं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, जिस कॉलेज में आप, अगर कॉलेज के प्रिंसिपल अपने जितने फैकल्टी मेंबर हैं उनको किसी भी प्रकार की अगर कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो, उसमें अगर वो सिर्फ इतना कह दें कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पूरा कॉलेज, पूरा प्रशासन, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो उसकी 90% चिंता खत्म हो जाती है। तो हृदय रोग आदि में जो कारण है, चाहे चिंता हो, स्ट्रेस हो, त्रास हो, भय हो, ये सब चीजें जो है हृदय रोग को, अगर इनसे व्यक्ति को दूर रखे तो इसमें व्यक्ति हृदय रोग की व्याधि से दूर रह सकता है, हाइपरटेंशन से दूर रह सकता है, तीक्ष्ण आदि द्रव्यों का सेवन नहीं करे, तीक्ष्ण व्यायाम आदि नहीं करें। तो इस प्रकार से दिनचर्या, ऋतुचर्या, लाइफ स्टाइल, डाइट, इनको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति अपने आप को खास तौर से अच्छे से स्वस्थ रख सकता है। अब अगर हम आगे चले तो आयुर्वेद में हमारे यहाँ पर जो खास तौर से मेद रसायन आदि द्रव्य बता रखी, इनको डाइट के साथ में अगर सेवन किया जाए तो उसका एक अच्छा परिणाम है, और उनका परिणाम सबसे अच्छा कोविड की कंडीशन में भी देखा गया। और अभी जो भारत सरकार की तरफ से पोस्ट कोविड मैनेजमेंट बताया गया, या जिन्होंने कोविड का मेन मैनेज प्रोटोकॉल बताया था, उस कोविड के प्रोटोकॉल में भी रसायन द्रव्यों के रूप में, चाहे वो यष्टि मधु हो या अश्वगंधा हो, इनका प्रयोग बताया गया। माने ये केवल सामान्य व्याधि या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, अपितु जो ऐसी पैंडेमिक है, संक्रामक रोग हैं, उनको भी दूर करने में इनका वो है, क्योंकि आयु बढ़ाने वाली है, मेद्य जो बल है, अग्नि है, वर्ण है, स्वर है, इन सबको बढ़ाने वाली है। तो शंख पुष्प आदि है, चाहे वो षष्ठी मधु हो, इनका भी हमारे लाइफ स्टाइल के साथ में अगर हम ऋतु के अनुसार, वय के अनुसार, काल के अनुसार इनका सेवन करते रहें तो निश्चित रूप से ये भी हमारे लिए लाभकारी हैं। तो इस प्रकार से पथ्याहार, ध्यान, निद्रा, विश्राम, व्यायाम, इन चीजों का बराबर पालन करते रहें। और जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने कहा था, सद्वृत्त है, आचार रसायन है, इनका ध्यान रखें तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। और डाइट और लाइफ स्टाइल दोनों का, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इनके अंतर्गत पूर्ण समावेश हो जाता है। और इसीलिए आचार्य चरक ने चरक संहिता सूत्र स्थान में मेन बात कही कि आहार आचार चेष्टासु सुखार्थी प्रत्यचेह च परम प्रयत्नम मातिष्ठेत बुद्धिमान हित सेवने। तो बुद्धिमान व्यक्ति को आचार, आहार, इन सब के प्रति प्रयत्नवान होना चाहिए कि आहार के नियमों का पालन करना चाहिए। और आहार के नियमों में एक नियम और सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मात्रया अव्यहृतम पथ्यम। मात्रा का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और आजकल मात्रा का ध्यान नहीं रखा जाता है, या तो अल्प मात्रा में सेवन हुआ, अधिक मात्रा में सेवन हो गया, अजीर्ण में सेवन हो गया। तो ये इन चीजों का ध्यान रखने से खास तौर से व्यक्ति को चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख, शय्या पर जागरे, ये एक लाइफ स्टाइल के मुख्य अंग है। शरीर से चिंता को दूर कर दें, शोक को दूर करें, भय को दूर कर दें, क्रोध को अपने जीवन में स्थान नहीं दें, तो दुख कभी भी अपने जीवन में नहीं आएगा। और मात्रा में लिया गया आहार भी पथ्यम चान्नम न जीर्यते, वो पथ्य अन्न का भी जीर्ण सही ढंग से नहीं होगा अगर हमारी लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं चिंता, शोक, भय, क्रोध आदि विद्यमान है। तो इसलिए उनसे हमको दूर रहना चाहिए। और नित्य सेवनीय द्रव्यों के रूप में आचार्य चरक ने बताया, ये जो बात मैंने पहले कह दी है उसमें वो चीज आ ही गई है, षष्टिका शाली मुदगांश आदि। पर एक बात और है कि वल्लूरम शुष्क शाकानी शालुकानी विषानी च, तो माशाश यवकांश न शीलेत, ये जो असेवनीय या अनित्य सेवनीय या कभी कभी सेवनीय चीजें बता रखी, उन नियमों का भी हमको पालन करते रहना चाहिए, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और अंत में एक ही बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि अगर हम दिनचर्या, ऋतुचर्या, डाइट और लाइफ स्टाइल के साथ में आचार रसायन, सत्यवादिनम अक्रोधम, इसका परिपालन करें तो भी व्यक्ति बहुत अच्छे से स्वस्थ रह सकता है। और आचार रसायन में इन सभी चीजों को बता रखा है, चाहे वो जप हो, शोच हो, धीरम हो, दानम, नित्यम तपस्विनम की बात कही गई हो, या फिर अपने यहाँ कहा गया है देश काल प्रमाणज्ञम युक्तिज्ञम अनहकृतम। तो देश का, काल का, प्रमाण का, युक्तियों का ध्यान रखते हुए अगर व्यक्ति डाइट, लाइफ स्टाइल का ध्यान रखेगा तो स्वस्थ रहेगा। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो ऋतु हरित की बता रखी है, विद्यानाम शारदी माता पिता च कुसुमाकर कदाचित कुप्यते माता न उदरस्ता हरित की, तो ऋतु हरित की आदि का सेवन जो बता रखा है वो सभी जगह उनका निर्देश किया गया है। तो इस प्रकार से हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आहार, आचार, इन सबको, तो ऋतुचर्या में इन सब के द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और इन नियमों में भी खास तौर से आहार जो है
उसका विशेष महत्व है, और वो भी ऋतु के साथ में मिल जाता है, तब उस आहार का महत्व सबसे ज्यादा हो जाता है। क्योंकि प्रायः जितने भी व्याधियां हम देख लें, चाहे वो उदर रोग की बात करें, तो वहां पे भी अत्युष्ण लवण क्षार विधायी को बता दिया है। ग्रहणी रोग में देख लो तो अभोजनात्, अधिभोजनात्, अजीर्ण भोजनात्, तो उसका कारण बता दिया, विषमासनात् बोलता है। पांडु रोग में क्षार अम्ल लवण बताए हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी व्याधियां हैं, इनमें आहार का विशेष रोल है। तो ऋतु को ध्यान में रखते हुए अगर भोजन का, आहार का सेवन किया जाए, तो निश्चित रूप से सुखार्ता सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवर्तय सुखम च न विना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। तो ये धर्म परो भवेत् जो है, ये खास तौर से दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का नियमानुसार पालन करना वही है। तो हम हमारे शास्त्रोक्त विधि में जो चीजें बता रखी है, उनका अगर पालन करें तो वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सामान्य व्याधि से लगा करके कोविड पेंडेमिक की कंडीशन को भी दूर करने में वो अपने आप को समर्थ समझती है। तो इस प्रकार से और अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर पूर्ण करता हूं, और आयोजकों को, धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय उदगीर के माननीय प्राचार्य महोदय को, सभी फैकल्टी मेंबर्स को, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए पूरे भारतवर्ष से जो भी जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। और मुझे आमंत्रित किया उसके लिए रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू प्रिंसिपल सर एंड एंटायर टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। और बीच में थोड़ा सा इंटरनेट के कारण जो व्यवधान हुआ था, उसके लिए भी मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you very much, Dr. Mahesh Vyas sir, for your very useful and informative speech. Thank you very much. I request Dr. Rajan Patankar sir for your speech. Please, Dr. Rajan Patankar sir. Hello. Hello. Can I audible? Hello. Sir, you are audible. Please proceed, sir. Hello. Hello. Sir, you are Am I audible. audible? Please proceed, sir. Yes, sir. Okay. So, a very well explained and very well organized webinar by Dhanvantari Ayurved College, Udgir. I must thank them to take such a good subject for this webinar. I thank them a lot. The opening comments by Vaidya Savarikar sir were very excellent and precise, and their thoughts are always provocating, and we must think properly. और उनके बारे में सही सोच ये ज़्यादा जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। आज के जो दोनों भी स्पीकर्स थे वो तो स्टालवर्ड्स है ही, और उनके दोनों के प्रेजेंटेशन के बारे में अगर कहा जाए तो डॉक्टर महेश व्यास जी ने जो कहा कि जब बाहर के कोई लोग आकर के कहेंगे कि इंडियन फूड इज फुल फूड, तो हम उसमें बिलीव करना लगेंगे। तो दैट इज नॉट करेक्ट एज पर आवर सोसाइटी, या जो हमको बचपन से सिखाया गया है। क्षय, प्रकोप और प्रसर का जो इम्पोर्टेंस है वो डायग्नोसिस के हिसाब से और चिकित्सा के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है वो भी उन्होंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल इन कॉमन पीपल to avoid any kind of diseases or any kind of pandemic. So thanks a lot and very well explained. And he is always, I should say, Sachin Tendulkar of Ayurved. So he has explained everything in precise and knowledgeable sharing presentation by Vaidya Mahesh Vyasji sir. Then our second speaker, Dr. Pradeep Bhavad, has also a precise and excellent and well explained presentation by him. Proper dinacharya should be first followed by ourselves, means by the Vaidyas, and then it should be percolated in common people and society. This is my opinion. Lifestyle management of mind and body
is also most important and need of the hour. So both the presenters are by their knowledge and by their height, they are very well explained and very well precise. So thanks a lot. Thanks a lot to Vaidya Datta Patil sir, who has invited me to share my views. As I should say, I'm a little soldier in front of you, but you had given me this opportunity to say some few words with you. I'm very much obliged. And this another seminars or with common diseases or anything like that should be taken up. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you, Patankar sir. As far as this national webinar on daily and seasonal regimen is concerned, all the eminent speakers have shared their views, including Dr. Saurikar sir as his inaugural speech, and even you also. Participants, if you have any query, I know it is very short of time right now. Definitely you can share your queries by message so that we will get that clarified. Rather, we will inform you on your mail address by getting the valuable views on those queries by the eminent speakers. I am very much thankful to Maharashtra University of Health Sciences, our Vice Chancellor, our Registrar, Honorable K.D. Chauhan sir, Dr. Fugare sir, Dr. Avale sir, and even if the observer appointed by MUHS Nashik for this webinar, Dr. Shivananji Tonde, for being a part of this national webinar. And as far as Maharashtra Council of Indian Medicine is concerned, we have also affiliated and permitted for this webinar. I am very much thankful to Dr. Ashutosh Gupta, our president, Dr. Sunil Jawari, our vice president, and all the members of Maharashtra Council of Indian Medicine for their affiliation. As far as my team is concerned, all are very keen. They are working on it. I give this opportunity for vote of thanks to our Dr. Vishal Anwale, the organizing secretary. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I am Dr. Vishal Anwale, Assistant Professor, Department of Clinical Sciences, and also organizing secretary of this national webinar. I am here to present the vote of thanks. I would like to thank our inaugural guests, Honorable Dr. Sriramji Saurikar sir and Honorable Dr. Rajan Patankar sir for inauguration of our national webinar. I would like to thank our chairpersons, Honorable Dr. Sanjay Ji Satpute sir and Honorable Dr. Praveen Ji Pete sir for joining us with their knowledge. I would like to thank our guest speakers, Honorable Vaidya Maheshji Vyas sir and Honorable Vaidya Praveen Ji Bhabat sir. I am sure that the precious knowledge that Vaidya Maheshji Vyas sir and Vaidya Praveen Ji Bhabat sir gave us will definitely help us in our studies. I would also like to thank our principal, Honorable Dr. Dattatreya Patil sir, for giving permission to organize this national webinar. And also special thanks to Dr. Avinash Nagar sir for helping us for this national webinar. Also, I thanks to all the participants, students present here for paying attention and learning. Thank you all.